Welcome, everyone. I hope I'm audible to all of you. Perfect. It sounds I'm audible to everyone. That is amazing. So, the first thing I'm sharing with you people is my environment. So, when I am sharing my environment, you are actually looking at a web UI, isn't it? In this web UI, what you're looking at is my workspace. See, this is not the way you will get the workspace in organization. However, this particular workspace will work exactly the same. This is in reality, it is a server. It's a Windows machine. I am using it as a workspace. So you can call it a client, you can call it a workstation, you can call it a desktop, you can call it a personal computer, whatever you like. Okay. So just to make sure you understand what I'm talking about, this is a Windows machine. We don't call it a Windows machine, we call it a workspace, a client machine, a workstation, a desktop, a personal computer. Now, I'm accessing it from where? I'm accessing this from my desktop. So I am on a desktop machine. Okay. From that desktop, I'm going to access another desktop. And you people are going to tell me which desktop is that. So there will be a confusion, isn't it? So the moment you say desktop, that means this machine is a desktop. But the moment you say a client machine, then it's okay. But if I say workspace, that means it is a desktop, but it is in the cloud. So now you know my environment. I have a machine in the cloud. I am accessing that machine. See, whenever a desktop is in the cloud, we call that a workspace. You see this? Desktops in the cloud. That's what it means. But why I did not take this particular workspace? I did not take that workspace because that will incur unnecessary charges to me. Getting the point? However, the best practice in the organization is to take this particular workspace. So if you read this, software as a service, applications, access to users within blah 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 blah, within existing web browsers. So that's what we are doing. We are accessing it through the web browser. So now you know one thing. I am also placing an order of a Linux machine. So let me place the order for 16.04 if available. 18.04. So now everybody knows why it is not available. However, I'm taking 18.04, that is Ubuntu micro instance. Okay. What is a spot request? You will come to know when we take your EC2 session. Okay. How to create a private subnet. That also you will come to know in the EC2, sorry, in the VPC session. However, why I'm actually creating the urge for you to learn that, but I'm not going for it right now. So there are still some people, those who will ask me many questions. So I will throw that in a public subnet so that there is no problem at all for you as well. I am just throwing it in a public subnet. जैसे तुम लोग machine लोगे ना, normal लेते हो ना, exactly वैसे ही लेना है. That's it. The only difference is you will not have a name like I have given a name. In your case, it will be a default. And in my case, I have created one. So you want to learn how to create one, right? Which you will learn very soon. But if I ask you a question from all my previous sessions, तुमको जो VPC सीखना चाहिए,
वो तुम्हारा जो प्रोडक्ट है, say for an example, you may go for a application which is storing data. So you tell me which documentation will you follow? और जितने भी लोगों के दिमाग में स्टैक ओवरफ्लो, quora.com एंड गूगल आ रहा है ना, तुमको अपने दोस्त बदलने की जरूरत है। लेकिन जिसने भी क्लाउडेरा रेफरेंस आर्किटेक्चर का डॉक्यूमेंट सोचा है, रेफरेंस, अब कुछ लोग है ना बेचारे सोचने की ताकत खत्म हो गई है ना, वो उनका फॉल्ट नहीं है उसमें, क्योंकि मैं भी जब कॉलेज से निकला था तो मेरे सोचने की ताकत खत्म कर दी थी उन लोगों ने। तो उसको हम लोग इंग्लिश में फ्रेशर बोलते हैं। तो उन गरीबों के लिए भी हम थोड़ा सा उनकी भी मदद कर देंगे। सो ये है वो डॉक्यूमेंट। सो ये डॉक्यूमेंट में कौन सा वाला? ओके, दिस वन। ओके, उसमें आर्किटेक्चर के ऊपर मैंने क्लिक किया और यहाँ पे लिखा है, देखो, क्लस्टर इनसाइड अ पब्लिक सबनेट, क्लस्टर इनसाइड अ प्राइवेट सबनेट। हाउ डज इट लुक लाइक? दिस इज हाउ इट लुक्स लाइक। तो अब मैं ये टॉपिक तो ले नहीं रहा हूं, सिर्फ पर्सपेक्टिव क्लियर कर रहा हूं, दैट्स इट। So now everything falls into its perspective that you have to know what it is. Before you go there, let's give a name. This is my Linux machine. Usually we don't write like this because Linux is a kernel. So this is Ubuntu. Okay. So can I write a server? Yeah, of course. This is my Ubuntu server. It's a server machine. So I have a client and I have a server. Both तुम्हारे सामने. So first I have to connect to my client machine. अब क्लाइंट में क्लाइंट चक्कर आता ना, इसके लिए ये सब इन्वायरमेंट समझाना पड़ता है, नवे लोग को नहीं आता समझ। सो पहले मैंने तुमको क्या बताया था कि आई एम यूजिंग अ क्लाइंट विच इज अ डेस्कटॉप कंप्यूटर, फ्रॉम दैट आई एम एक्सेसिंग दिस environment. Now I am copying this IP address. तो अभी हमने IP एड्रेस के बारे में एक छोटा सा सेशन किया जिसमें हमको ये पता चल गया कि हाँ, पब्लिक IP एड्रेस मतलब खरीदो। परफेक्ट। So now I want to access a Windows machine. So I can use Microsoft Remote Desktop. If I want to use, if I want to connect to my Ubuntu server, then I will use the terminal. तो डिफरेंस क्या है? टर्मिनल में मेरे पास CLI एक्सेस होगा और यहाँ पे मेरे पास GUI एक्सेस होगा। लेकिन ये जो तुमको दिख रहा है, ये क्या है? ये तो वेब UI एक्सेस है। ये कंपनी के अंदर एक्सेस सिर्फ आर्किटेक्ट के पास होता है। किसके पास? आर्किटेक्ट। Many people, they say, please don't show them all this environment because they will become pain in the wrong place and this and that and all. ऐसा मेरे पास आते थे पहले बहुत लोग बोलने वाले। Then I told them कि this is where the problem is. See, 10-20% वो रहेंगे ही ना, पाकिया एंड नाइकिया। तो 10-20% के लिए मैं 80% को सेक्रीफाइस क्यों करूं? Why should I sacrifice those 80% people? So I told them, no, we have to show them 360-degree view, and in order to do that you may have to invest extra time. जैसे अपने 2 महीने अभी पीछे चले गए ना, ये कैसे थे मालूम है? मेरे लिए मेरी डिक्शनरी में यूजलेस, लेकिन मैकेनिकल के लिए भाई कुछ बेसिक समझ में आया। कंप्यूटर साइंस ग्रेजुएट को इतना सीखने के लिए 3 से 4 साल लगता है, और उसके बाद उसको पूछो FSB क्या होता है? क्या होता है रे FSB? यूट्यूब के ऊपर देखेंगे ना आप उन। अच्छा, BSB क्या होता है? अच्छा, G1 क्यों बोलते? चल बोल। अब बिट क्यों है ऐसा? अच्छा चल, 64 बिट ऑपरेटिंग सिस्टम है तो 128 बिट ऑपरेटिंग सिस्टम है कि नहीं है? व्हाट डू यू से? 128 बिट ऑपरेटिंग सिस्टम। सी, उसका एक जवाब है, कॉमन पब्लिक के लिए नहीं है, साइंटिफिक दुनिया के लिए है, लेकिन 128 के ऊपर कोई ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं बना है अभी तक। यस,
क्यों? क्योंकि कॉमन जनरली तुम्हारा काम 64 बिट से हो जाता है। इसका मतलब सॉफ्टवेयर आगे है कि हार्डवेयर आगे? तो उसका आंसर है हार्डवेयर आगे, सॉफ्टवेयर पीछे। क्या बात है, 4 साल का कंप्यूटर साइंस खत्म शॉर्टकट में। अरे भैया मजाक नहीं कर रहा हूँ। इसके बाद उनको पगार कितनी मिलती? अब हमारे को पगार कितनी मिलती है ना? एक तो बंदा मेरे पास आया था, बोला मेरे को 5,000 पगार है। मैंने तो जॉब छोड़ने की कष्ट करेंगे आप? जॉब छोड़ने की कष्ट कीजिए प्लीज। हाँ, उसको पगार नहीं बोलते, उसको भीख बोलते, भीख हमारी भाषा में। उससे तो अच्छा है तू सिग्नल पे बिरयानी बेच, ज्यादा पैसे आएंगे तेरे पास, कैलकुलेट करके देख ले। So that's how it works. Now the question is, in my environment, in this environment, we have a workspace, which is a client. We have a server. So I am connecting from my workspace. देखो, इसमें ना एक क्वेश्चन है, भयंकर क्वेश्चन। और वो क्वेश्चन ये है कि इससे जब मैं कनेक्ट करूंगा तो विल इट बी सिक्योर्ड? देखो, मैं अभी आगे क्या पूछने वाला हूं ना, ये तुमको मालूम नहीं है क्या? तुमको मालूम है एक्चुअली, लेकिन तुमने उसको बाय हार्ट नहीं किया है, क्योंकि रोज काम नहीं करते ना उसके ऊपर, तो बाय हार्ट हुआ नहीं है वो। सो आई एम सेइंग सेफ एंड आई एम गोइंग फॉर इट। सो लेट मी पंच इन द पासवर्ड। Oh, administrator and Windows की भाषा में, of course. Is this the password? Yes. See, now I'm revealing the password to you. See, and I am asking, is it secured? तो मेरा जो क्वेश्चन है वो अभी भी रेलेवेंट है। You know why? मेरा क्वेश्चन ये है कि is it secured on a network? तो उसका एक्चुअल आंसर है it is secured on a network. Yes, it is. क्लाउड के अंदर टू टाइप्स, दो टू वे सिक्योरिटी होती है। वन इज फ्रॉम द क्लाइंट साइड, द अदर वन इज फ्रॉम द AWS साइड। तो 50% तुम देखो, 50% हम देखते हैं। अब मैंने मेरा पासवर्ड तुम्हारे साथ शेयर किया, तो व्हाट डज दैट मीन? कैन यू लॉग इन? या इफ यू आर अ गिग एंड यू नो अ लॉट ऑफ थिंग्स, है ना? अदरवाइज एक काम करते हैं, मैं थोड़ी देर बैठता हूँ, 5-10 मिनट। चलो तुम जरा करके दिखा दो, चलो हैक करके दिखा दो। है ना? इसलिए जज्बात में आने से पहले समझो, जज्बात हमेशा काम नहीं आता है। Okay, so now we have understood this component. See, this is one reason why we get paid, ना? हमको पगार मिलती क्यों है? Because they have so many expectation from us. So I'm connected now. I have to connect now to what? To my client machine. तो say for example, तुम्हारे पास भी ऐसा हो सकता है chances कि तुमको कंपनी ने दिया तो है एप्पल का मैकिंटोश, यस, और AWS अभी बहुत ज़्यादा हायरिंग कर रहा है। एज्योर आया है पूना में, गूगल आया है पूना में, और अब बहुत ज़्यादा हायरिंग चल रही है। लेकिन उनके इंटरव्यूज पार करने थोड़ा सा नॉलेज लगता है। दैट्स हाउ इट इज। सो इफ यू फोकस वेल, नेक्स्ट ईयर का तुम्हारा अगर टारगेट है, तो नेक्स्ट ईयर वो आने वाला है, क्या बोलते हैं उसको, क्रैश, क्या बोलते हैं उसको, कुछ तो भी बोलते हैं ना, इकोनॉमी, रिसेशन। यस यस, वेरी नाइस। देखा, रिसेशन। तो रिसेशन आएगा तो हमारे लिए उससे कोई लेना देना नहीं है। मेहरबानी करके फालतू लोगों के साथ उठना बैठना बंद करो। हाँ, रिसेशन से हमारा कोई लेना देना नहीं है। हाँ, हम लोग इन डिमांड ऑन डिमांड वाली मार्केट में बैठे हुए। रिसेशन किसके लिए आने वाला है मालूम है? वो बेचारा फॉक्स प्रो, कोबॉल, पास्कल, रास्कल, PHP, जावा, ये इनके लिए रिसेशन, हमारे लिए नहीं। गेटिंग द पॉइंट? दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू रिमेंबर। We don't
go for it. अभी तो बहुत सारे content बाकी है, तुमको idea आ जाएगा. By December, you will stop even talking to people because you will be in the state of shock. So I'm going to connect now. Now, in order to connect to that machine, I need an IP address. So अब तुमको इतना तो पता ही होगा दोस्त. I am using the same switch. देखो पॉइंट याद रखना, प्रीवियस सेशन से मैं क्वेश्चन निकाल के पूछ रहा हूँ. I am connected to the same switch. चलो देखने का तुमको, देख लो. I am connected to the same switch because I am in the same availability zone. My question to you is, will I need a public IP or will I need a private IP? So I will need a private IP, remember, because I'm connected to the same switch. So if I use the public IP, what happens? Will it not connect? It will connect, but it will not be secured. तो एक क्वेश्चन है, why? तो उसका आंसर है because it has to use the public DNS. देखो एकदम सिंपल आंसर है. It has to use a public DNS. So why would I unnecessarily send everything to public DNS where maybe hackers are sniffing? Getting the point? So we don't want that unnecessary. तो मैं क्या करूंगा, अभी प्राइवेट आईपी लेके देखता हूं. Are we able to connect? Now in order to do that, I will need the चाबी. तो ये तो तुमको ऑलरेडी पता है, तो I will load this without wasting time. मैंने आईपी एड्रेस तुम्हारे सामने पेस्ट किया है. मेरे केस में आईपी is 10.0.0.44 because this subnet is created, isn't it, by me. You will learn how to create that very soon. I am connected. Now, because I am connected and I was asking you a question, I am connected to the same switch. So let me ARP. तो मैंने ARP किया तुमको दिखाने के लिए. तो ये क्या बोल रहा है कि तुम है ना, एक्चुअली मेरे विंडोज का आईपी एड्रेस देखो, इधर क्या है, पीछे देखो क्या लिखा है, 31. ये दिख रहा है, प्राइवेट आईपी एड्रेस 31. पीछे 31 मिला. अच्छा, और ये जो है 44 है. तो क्या क्या मिला तुमको, 31 मिल गया, 44 मिल गया, isn't it? ये क्या है, 1 and 2. इसका मतलब दोस्त, मेरा विंडोज मशीन अलग रैक में है और मेरा अबंतु का जो मशीन है वो एक अलग रैक में है, क्योंकि उसका हार्डवेयर अलग होगा, उसका बिल भी अलग होगा. इसके लिए 2 स्विच लगे हुए. तो मैंने तो एक ही स्विच बोला था ना, लेकिन तुमको आई टोल्ड यू सेम स्विच. तो मेरी बात गलत निकल गई. इससे तुमने क्या सीखा? तुमने ये सीखा कि unless and until I don't fire the command, I will never commit anything to anybody. I will not say anything unless and until I fire the command. Why? Because reliability. Reliability. हमको ये पता होना चाहिए ना, ये रिलायबल सिस्टम है नहीं है. भाई तूने कुछ बोला, तेरी इज्जत का कचरा हो गया ना, मेरी इज्जत का कचरा हो गया. इधर जगह पे 2 स्विच है, तो मैंने गलत किया ऐसा बोल के कि ये एक ही स्विच है. हाँ, अगर कोई ये बोले कि यार दोनों स्विच आपस में कनेक्टेड है, फिर भी है तो 2. Are you getting the point? That's how it works. Okay, so the question is, never say anything in the world of IT unless and until you find out. तुम्हारे साथ यही सिचुएशन कब आएगा ना, मैं तुम्हारे कुछ जूनियर होंगे, तुमको ऐसा लगेगा उनकी इंग्लिश सुन के, उनके कपड़े देख के कि ये बहुत ज्ञानी है, और उसकी बात का तुम भरोसा भी कर लोगे. बाद में तुम बोलोगे हाँ ठीक है, इसने बोला ना, इसने चेक किया है, उसने बोला मेरे को. तो वो मनी मन सोच रहा हूँ, अरे सर मैं तो बोल वचन दिया था, चेक तो किया नहीं असल में. तो वाट किसकी लगने वाली है दोस्त? अपनी लगने वाली, क्योंकि फुल एडमिन अपन बन के बैठे हैं ना, तो अपना काम है उसको बोलने का, चल दिखा मेरे को तेरे सिस्टम पे लेके चल, ब्रिंग योर लैपटॉप ओवर हियर.
ब्रिंग इट हियर, शो मी। तो शो मी जो होता है ना, उसको दिखाना पड़ेगा ना। जैसे ही दिखाएगा तो सच और सच्चाई का डिफरेंस जगह पे, that's how it works. Now, because we did a topic last time, which is not easy for everyone to understand within what you call it 2 hours, and if they have invested that 5 days in understanding, getting the point. See, मेरे लिए ना तुमको ऑफर, किसी और का ऑफर लेटर दिखाना एक रिस्क लेने के जैसा है. आई एम टेकिंग रिस्क ऑफ शोइंग somebody else's offer letter to you. But you know, that keeps you motivated. Because that keeps you motivated, I am sacrificing. That's okay यार. तूने भी देखा था ना, मैं ऐसे बात करता हूँ उनसे. तू देखा था ना पहले उन लोग का ऑफर लेटर, अभी तेरा दिखाने को क्या तकलीफ हो रही? तो फिर बेचारे गरीब वो भी बोलते चलो ठीक है सर दिखा दो, लेकिन सर मेरा ये है ना सैलरी हाइड करो प्लीज सर. So that's how it works. So it keeps you motivated. I know कितना भी बोलो, कुछ भी बोलो, कुछ फर्क नहीं पड़ता है. और अपनी कंट्री में मोटिवेशन की जरूरत इसलिए पड़ती है कि नेगेटिव लोग घर में बैठे होते हैं. अब बाहर क्या जाऊं और क्या करूं, घर में ही नेगेटिव लोग बैठे होते हैं. तो मैं तो बोलता हूं कि वो संदीप महेश्वरी का जब तुम लोग वीडियो देखते हो ना, थोड़ा लाउड मम्मी पापा को भी थोड़ा सुनाने का रहता है, ताकि नेगेटिविटी उनकी पहले जाए, बाद में हमारा कुछ कल्याण होगा. That's how it is. So now I am connected to a client machine. अब चक्कर आने वाला है, पहले ही बोल देता हूँ. चक्कर क्यों आने वाला है वो भी बता देता हूँ. But before we go ahead, what I'll do is I will go back to Apple Macintosh. Okay, I am on a Apple Mac. So उसको मैं पूछता हूँ तेरा नाम तो बता पहले. तो तुमको बता दिया उसने, डार्विन. Okay, and it is also in the host name, it is written blah blah blah. So I'm typing who is 0.0.0.0. तो वो बोल रहा है कि मैं आईना के पास गया था. किधर? आईना के सर्वर पे. तो आईना का कुछ ना कुछ फुल फॉर्म तो होगा. आईना के सर्वर पे गया था. तो बोल रहे ये ना रिजर्व्ड है, रिजर्व्ड. और ये रिजर्व्ड होने की वजह से आईना ने इसको क्या किया है, लोकल आइडेंटिफिकेशन के लिए रख दिया है. और ये पूरा के पूरा रेंज, मतलब 0 से लेके 255 तक रिजर्व्ड है. एज व्हाट? एज लोकल आइडेंटिफिकेशन. And we call that what? What do we call it? We call it a release IP, isn't it? अच्छा, ये इंफॉर्मेशन मैंने तुमको कहाँ बताया? किसी किताब में बताया क्या? नहीं, मैंने तुमको बताया रजिस्ट्रार की रजिस्ट्री के अंदर लिखा हुआ है, वहां पे लेके गया. Now what I'll do is I will come back over here. I know it is, we need to install Whois, I know that, don't worry, but I'm still typing to show you कि Ubuntu is so helpful. See, उसने बोला तेको क्या चाहिए? मैंने बोला ये बाइनरी चाहिए. कौन सी? हु इज. तो उसने बोला देख ऐसा कमांड है, टाइप कर और इंस्टॉल कर. उसके बाद टाइप करना हु इज 0.0.0.0. अब ये जो क्वेश्चन है ना, ये नेटवर्किंग वाला नहीं है जो मैं अभी पूछने वाला हूँ. ये क्वेश्चन ऑपरेटिंग सिस्टम वाला है और मुझे देखना है कौन आंसर कर सकता है. Okay, so I'm going to do up arrow. No Whois server is known for this kind of object. देखो मैंने क्या पूछा, हु इज. मैक में पूछा, एप्पल मैकिंटोश में, तो उसने मेरे को आंसर किया कि नहीं? यहाँ पे पूछा, इसने आंसर किया क्या? बोला नो Whois सर्वर इज नोन फॉर दिस काइंड ऑफ ऑब्जेक्ट. सी, डोंट वरी, रिलैक्स. ये जो हु इज बाइनरी है ना, ये बाइनरी है ना, ये किसने बनाया? ओपन सोर्स कम्युनिटी ने. और एप्पल का हु इज किसने बनाया? एप्पल है ना, मैक वाली मैक का प्रोजेक्ट ने बनाया है बस. सो जो लोग ये सोच रहे हैं कि नहीं यार हु इज से आना चाहिए था, उनके लिए व्हाट विल डू इज विल टाइप
हमारा नेक्स्ट आईपी एड्रेस 127.0.0.0. तो अब आंसर आया, और एक खास बात इस आंसर की, इसने भी आईना की बातें किया हमारे साथ में. सी, ये क्या बोल रहा है, इंटरनेट असाइंड नंबर अथॉरिटी. तो मैं स्क्रॉल करके ऊपर लेके जा रहा हूं ताकि तुमको पूरा देखने को मिले. हियर इट इज, सी, दिस इज वेयर वी फायर्ड द कमांड, isn't it? And this is where you got the information. Irene, who is data services, blah blah blah. 127.0.0 255 का पूरा रेंज जो है ना, वो क्या है, वो है रिजर्व. किसने रिजर्व किया है? आईना ने. क्या बोल के? लूप बैक. व्हाट इज इट कॉल्ड? लूप बैक. इन विच infrastructure, in which stack? IPv version 4 as a special case. Oh, समझ में आया? अब ये जो है ना ऊपर साइडर, देखो अगर ये 127 यहाँ लिखा है और यहाँ 8 लिखा है, इसका मतलब दिस विल नॉट चेंज. अगर यहाँ पे 16 लिखा है और यहाँ पे कोई नंबर है, तो दिस टू numbers will not change because it is telling you 2 octates. 8 plus 8 16, 2 octates है ना. अगर यहाँ 24 लिखा है, इसका मतलब 3 octates. और अगर यहाँ पे 32 लिखा है, that means all octates will not change. तो इतना खाली ध्यान में रखना है तुमको. ओके, अपना उसके बाद वाला जो नंबर है, that is who is 10.0.0.0. अब ये रजिस्ट्रार क्या बोलता है वो देखेंगे. ये लॉस एंजलिस में है और here is the number. You see this? It is saying reserved by Aina. और ये जो है ना IEEE है ना, उसका आईडी है. ए ब्लॉक है, ए ब्लॉक मतलब ए में आता है ना. एंड इट इज रिजर्व्ड एज व्हाट? प्राइवेट आईपी एड्रेस. अमेजिंग, अमेजिंग. प्राइवेट आईपी एड्रेस. Now let's go to another IP, that is 100.0.0.0. ऐसे ट्राई करके देखेंगे, है ना. Let's go right on top. जय कुमार, जया कुमार, कौन है भाई? सी, क्या लिखा है इधर? यानी वो अपने ही सब इंडियन भरे पड़े. देखो, Verizon Business. Anybody knows who's that? ISP. Yes, if you're working for any foreign country, a BPO call center or whatever it is, you will come to know that this is reserved by for, मतलब तुम कुछ भी टाइप करो, तुमको कोई ना कोई ISP मिलेगा. कुछ ना कुछ ISP का मिलेगा. इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर. अब Verizon बहुत बड़ा ISP प्रोवाइडर है, okay, in United States. Now, the next IP address, that is 172. So let's say who is 172.16.0.0. just बाद में एक डॉट और आ गया. Now let's come back here to have a look. See this, 16 से लेके 31 तक. तो इस केस में तुमको एक नई चीज सीखने को मिल रही है. यह क्या बोल रहा है कि देख, 2 ऑक्टेट तो है, तो यहाँ पे 16 आना चाहिए था. अरे 16 आना चाहिए ना, लेकिन साइडर कैलकुलेशन के अंदर उनको क्या लिखना पड़ा? 12, बिकॉज द कंप्लीट रेंज इज नॉट रिजर्व्ड. रेंज का कुछ हिस्सा है. दैट्स व्हाट इट इज सेइंग. बट व्हाट यू नीड टू रिमेंबर, 16, देखो 120 172.16 172.31, बस इतना याद रखना है. या तो फिर 16 से 31 याद रखो. What is it? It is reserved by Aina B block as private address. Private IP address, which means you don't have to pay a single penny. Take it, use it free of cost. अब हमारा आया 169.0.0.0.
254.0.0 who is लिखने भूल गया सी वो आदत हो गई यार ऑटो करेक्ट की है ना तो CLI पे कभी कभी भारी पड़ जाता है ओके 169.254 blah 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 क्या लिखा है देखो रिजर्व्ड आईना लिंक लोकल बट रिजर्व्ड है कि नहीं रिजर्व्ड है सी और इन दिस केस यू कैन सी 16 8 plus 8 है ना इट इज रिजर्व्ड तो फिर मैंने तो तुमको अपीपा बोला था लेकिन बराबर है भाई अपीपा माइक्रोसॉफ्ट का है ऐसा भी तो बोला था ना उसकी भाषा है अपीपा इज द वर्ड यूज्ड बाय माइक्रोसॉफ्ट नेटवर्किंग वाले इसको लिंक लोकल बोलेंगे लेकिन उसका कॉन्सेप्ट रिमेन्स द सेम ओके वो कर्नल वाला जो कॉन्सेप्ट है ओके नाउ आवर नेक्स्ट IP एड्रेस दैट इज 192.0 168 है ना so let's type who is 192.168.0.0 what is it reserved as block C होना चाहिए ना देखो ना इधर है तुम्हारे सामने reserved by Aina C and isn't it amazing 192.168 तो तुम जब प्रैक्टिस करोगे तुमको बाय हार्ट करना है तो इस तरीके से करो who is को सता डालो मतलब who is का जो सर्वर है ना उसको क्रैश कर दो they will feel so happy कि यार इतने लोग आते हैं यार अपने को चेक करने के लिए अमेजिंग so they will keep the server alive now since we have seen these IP address अब देखते हैं ना एक IP एड्रेस है जो किसका है इसकी क्यूरियोसिटी तुमको होना चाहिए and that is 1.1.1.1 okay Epnic Research and Development so I'm scrolling right on top Epnic and Cloudflare DNS Resolver project see अच्छा और एक IP है who is 8.8.8.8 तो ये गूगल का है ना लेकिन see this range belongs to Google and Google uses this range for TNS activities देखा जाए तो गूगल बोल सकता है कि इंटरनेट मेरे बाप का है क्योंकि सच में इसी के DNS इसी का चलता है मार्केट में now see that's how it works okay so some of these IP address तो तुमको पता चले ARP तुमको पता चला तुमने वो कॉन्सेप्ट सुना था ना लिसन वाला नेटवर्क पे सुनते कैसा है isn't it okay what is actually the meaning of that listening so let's give a try you know so I will use a duplicate session अच्छा तो ये तुमने देखा है ना नेटकैट you've already seen this netcat और वो NC local वेरी नाइस परफेक्ट तो हम लोग एक काम करते हैं क्योंकि ये तुम लोग वापस से मैं एक बार दिखाऊंगा डोंट वरी व्हेन द टाइम द रेलेवेंट टाइम क्योंकि अभी तुमने ऑलरेडी देखा है तो व्हाई अननेसेसरी वेस्ट टाइम लेट्स गो टू द नेक्स्ट पार्ट आई विल टाइप dig google.com तो क्या हुआ भाई हुआ कुछ नहीं
यहाँ पे ये A लिखा है ना, इसका मतलब होता है देयर आर मल्टीपल रिकॉर्ड्स, जिसको DNS रिकॉर्ड बोला जाता है। A रिकॉर्ड, ट्रिपल A रिकॉर्ड, NS लुकअप रिकॉर्ड एंड MX रिकॉर्ड, ऐसे बहुत सारे रिकॉर्ड्स होते हैं। सो दिस इज A रिकॉर्ड एंड इट इज टेलिंग मी दैट ये जो रूट है, रूट दिख रहा है डॉट, आज दिखा ना डॉट, ये क्या है, उसके बाद कॉम है और उसके बाद गूगल है। तो क्या बोल रहा है, ये जो सर्वर है google.com, इसका जो रिजॉल्वर है आईपी एड्रेस वो ये है। सो मैं क्या करूंगा अभी, हु इज दिस आईपी एड्रेस, ओके। तो बट नेचुरल हमको ये तो समझ में आ ही गया था कि दिस आईपी विल डेफिनेटली बिलोंग टू गूगल। लेकिन एक पॉइंट है इसमें, गूगल ने ये पूरा के पूरा रेंज खरीद के रखा है, ये जो है ना 217 वाला। तो अगर तुम जानकार हो 172.16, 172.217, तो तुम्हारे को सब समझ में आ जाना चाहिए या तो ये गूगल का रेंज है। दिस सर्वर हैज टू बी गूगल्स सर्वर। तो ऐसी कुछ चीजें होती है जो धीरे धीरे हमको, जैसे जैसे टाइम आगे जाएगा, यू विल गेट टू लर्न ग्रेजुअली, ओके। नाउ हमने क्या किया था, एक कमांड फायर किया था, क्या था वो, डिग, इजंट इट। अब धोखे में मत आना। सो दिस टाइम आई एम डूइंग डिग cloudage.co.in। तो इसने बोला कि देख भाई, क्लाउड एज का जो है ना ये रूट है, उसके बाद .co.in है एंड ब्ला ब्ला ब्ला। सो दिस इज द आईपी, आई एम कैप्चरिंग दैट आईपी, हु इज। अब यहाँ पे ये आईपी किसने खरीदा है उसका नाम आएगा। दिख रहा है ना, GoDaddy, which means I am on GoDaddy। That's मतलब मेरा जो क्लाउड एज का जो सर्वर है वो GoDaddy के ऊपर रखा हुआ है, isn't it? And I am using one of the IP address. So we are actually paying 5,000 for one IP address. तो उसका रेंज इसके अंदर से उसने उठाया और मेरे को दे दिया और खुद भी पैसे कमा रहा है, isn't it? लेकिन अगर मुझको ही खरीदना पड़ता तो, ओ माय गॉड, तो उसके लिए कुछ कंप्लायंसेस है। फर्स्ट ऑफ ऑल, दे डोंट सेल दैट टू अ स्टार्टअप, ओके। तो वहीं अपन डिस्क्वालीफाई हो गए ना, खत्म हो गई अपनी कहानी उधर ही जगह पे। लेकिन मैंने जो कमांड फायर किया टिग, तो तुम्हारे दिमाग में क्वेश्चन होगा ना, व्हाट इज टिग? इट इज अ डीएनएस लुकअप यूटिलिटी। अब है ना, हम लोग एक डीएनएस अपना खुद का बनाएंगे अभी, ऐसे ही तुम्हारा कॉन्सेप्ट क्लियर करने के लिए। सो व्हाट आई डू इज, एज आई टोल्ड यू, व्हेन आई डू SSH, ओके, 127.0.0.0, एक्चुअली 1 डालना चाहिए यहाँ पे। तो उसने मेरे को क्या बोला, देखो, वो मुझको बोल रहा है कि मुझको सर्वर मिल गया, खुश हो रहा है वो। तो आर यू श्योर यू वांट टू कंटिन्यू कनेक्टिंग? तो मैं उसको बोलता हूँ ठीक है भाई, यस। देखो हाँ, यस। जैसे ही मैंने बोला यस, तो उसने बोला कि परमिशन डिनाइड। तो चकमे में आने की कोई जरूरत नहीं है। व्हेन वी से कनेक्टिंग एंड इट इज यस, मतलब कनेक्ट हो गया, तो आई एम एक्चुअली नेटवर्किंग लेयर पे आई एम कनेक्टेड टू द सर्वर, बट वहां पे जाने के लिए जो है मेरे को परमिशन नहीं मिल रही, वो एक अलग चीज है। गेटिंग द पॉइंट? सो दैट इज समथिंग you have to understand. But before I say something, I will prove my point. So I'm typing SSH, okay, this time 127 टाइप करने से पहले मैं -v टाइप कर रहा हूँ,
मतलब मुझको सब कुछ दिखा कि बैकग्राउंड में तू क्या कर रहा है, यू नो, लाइक अ पोजेसिव स्पाउस। वाइफ बोलूंगा तो बॉयज को गुस्सा आएगा, हस्बैंड बोलूंगा तो गर्ल्स को गुस्सा आएगा, इसके लिए स्पाउस, अब दोनों को गुस्सा आएगा। पोजेसिव, isn't it? You tell me everything what you're doing, verbose. So 127.0.0.1. Oh my God, see permission deny तो इधर है, लेकिन उससे पहले बहुत कुछ हो चुका है जो तुमको पता नहीं है। उसमें हमारे लिए जो सबसे इंपॉर्टेंट है वो क्या है? सर्वर क्लाइंट एंड सर्वर कम्युनिकेशन, isn't it? तो एक पॉइंट तो क्लियर हो गई कि क्लाइंट गया था सर्वर के पास और सर्वर गया था क्लाइंट से कम्युनिकेट करने के लिए, मतलब क्लाइंट ने सर्वर से और सर्वर ने क्लाइंट से कम्युनिकेट किया। एक बात कंफर्म हो गई, नेटवर्किंग लेयर पे कनेक्शन स्टैब्लिश हुआ। ये बात किधर कंफर्म होती है? तो उसके लिए मेरे को तुमको कनेक्शन स्टैब्लिश दिखाना पड़ेगा। सी, connecting to this IP address, port number 22, and it says connection established. So what we did not discuss last time is known as OSI layer. OSI layer. तो उसका जो फुल फॉर्म है ना, उसके बारे में मालूम करके तुमको कुछ फायदा नहीं है, लेकिन तुमको जो याद रखना है कि ये जो मैं अभी बता रहा हूं कि नेटवर्क लेयर पे हम लोग कनेक्टेड है, तो फिर परमिशन डिनाई किधर हो रहा है? दैट इज माय क्वेश्चन। Now, application layer, very nice. We are getting denied on the application layer. So what is the name of the application? SSH, excellent. So the name of the application is SSH. याद है? तो एप्लीकेशन किसके ऊपर चल रहा है? लिनक्स के ऊपर। तो लिनक्स का आर्किटेक्चर क्या है? क्लाइंट एंड सर्वर। So when you have a client and server relationship, तो SSH एक क्लाइंट है जो सर्वर के पास गया और बोला मुझको जो है ना सर्वर में लॉगिन करना है। उसने बोला परमिशन डिनाइड। वो अलग बात है, व्हाई, फॉरगेट अबाउट व्हाई, वी विल डिस्कस दैट, डोंट वरी, वी विल सॉल्व दैट प्रॉब्लम एज वेल। बट बिफोर वी गो देयर, अंडरस्टैंड नेटवर्क लेयर पे मैं कनेक्टेड हूं। तो जैसे ही मुझको मैसेज मिला, मैं समझ गया यार मैं आई एम कनेक्टेड एक्चुअली। नाउ व्हाट विल डू इज विल टाइप वंस अगेन same command, and that is SSH local host. अभी मैंने उसको आईपी एड्रेस दिया क्या? नहीं। तो उसको आईपी एड्रेस रिजॉल्व करना पड़ेगा कि नहीं? करना पड़ेगा। सो लेट्स चेक आउट, उसने रिजॉल्व किया कि नहीं किया। सी, कर दिया, उसको पता है ये आईपी एड्रेस है उसका। अब क्वेश्चन ये है कि उसको पता कैसे चला? तो उसका आंसर ये है कि उसको डीएनएस ने बताया। तो अगर आज के जमाने में मैं उसको डीएनएस बोलूंगा ना, तो इस जनरेशन को समझेगी नहीं बात, लेकिन वंस अपॉन अ टाइम तुम्हारा इस दुनिया का पहला डीएनएस था वो। यस, दैट्स हाउ, बिकॉज कंप्यूटर्स ही बहुत कम थे ना दुनिया में। तो तुम्हारा जो लोकल डीएनएस है, इंटरनल डीएनएस, etc host, that is the name of the file. So we will go to that file. Okay, sudo nano etc hosts. तो इसमें होस्ट देखो क्या है ना, पहले वो resolve.conf ये वो मैंने उसको सब साइड पे कर दिया, ठीक है, so that you can relax and chill. There was a file called resolve.conf, लेकिन अभी नहीं है, तो क्यों फालतू में तुम्हारा टाइम वेस्ट करने का ना। अभी तुमको क्या याद रखना है, etc होस्ट के अंदर उसको क्या मिल गया? लोकल होस्ट। ओके, अभी लास्ट में कौन दिख रहा है मेरे को? अजीज पटेल। ओके, यूएस में तो बैंड है बेचारा, तो कोई बात नहीं, यू कैन ट्राई फॉर यूरोप। सरनेम इज बैंड हो गया उधर।
So I'm typing now 127.127.127.127. Okay. And www.aziz.com. और मैंने उसका एक वो रखा है, क्या नाम है उसको, क्या बोलते हैं उसको, होस्ट नेम. सो दिस इज, एक मिनट इसको नीचे करेंगे ताकि तुमको साफ दिखाई दे. दिस इज द होस्ट नेम, दिस इज द DNS एड्रेस, and this is the IP address. ठीक है. So I'm saving it, coming out of it, and I'm typing SSH Aziz. अब देखो, हाँ मैंने सिर्फ AZ और टैब मार रहा हूं, खुद से रिजॉल्व किया क्योंकि वो ETC होस्ट की फाइल पढ़ रहा है. Now I am hitting enter. तो वो क्या बोल रहा है, IP एड्रेस मेरे को बता रहा है कि नहीं, 127 डॉट बता रहा है. Yes. So I say yes. Permission denied, I told you, don't worry about that. That is application layer. We are talking about the network layer for now. Okay. Now I will do ping. AZ tab. What do you get to see? See? तो एक्चुअली मेरा जो पिंग है ये क्या कर रहा है पता है, ये सिर्फ और सिर्फ स्टैक चेक कर रहा है. IPv4 का जो स्टैक होता है ना, उसको चेक कर रहा है कि इट इज वर्किंग और नॉट वर्किंग. तो जब वो रिप्लाई ला रहा है, इसका मतलब इट इज वर्किंग. ICMP packet is responding, that means it is absolutely fine. मतलब तुम्हारा इंटरनेट चालू है, चालू कर सकते हो, है नहीं, चालू कर सकते हो. That's what it means. But suppose if I say SSH cloudage.co.in, you tell me what is the difference in between. ये इसने बोला मेरे को मिल गया, तो पहले वाले में और इसमें क्या डिफरेंस है तुमको बताना है. तो इसने रिजॉल्व करके मुझको बताया, जो मैंने तुमको डिग करके दिखाया था, डिग किया था कि नहीं, और डिग में मैंने क्या बताया था, IP एड्रेस. तो इसने ऑटोमेटिकली बैकग्राउंड में डिग किया कि नहीं किया, और IP एड्रेस ढूंढ के लाया कि नहीं लाया. अच्छा, ये पब्लिक है कि प्राइवेट है, ये पब्लिक है. सो आई एम सेइंग यस. अब ये नेटवर्क के बाहर गया कि नहीं, सो द आंसर इज यस. तो बोल रहा है कि ठीक है पासवर्ड दे अगर तेरे को लॉग इन करना है. तो मैं इसको बोलता हूँ ठीक है मैं तेरे को पासवर्ड देता हूँ. इससे मुझको एक बात पता चल गई कि इस सर्वर पे SSH का सर्वर है. तुमको ये बताना है कि मुझको ये कैसे पता चला कि नेटवर्क पे ये जो सर्वर है इस पे SSH का सर्वर है. हाउ डिड आई कम टू नो, व्हाई एम आई सेइंग कि है. हाँ, बिकॉज क्लाइंट वहां गया तो जब भी तो SSH क्लाइंट, सी संदेश इज सेइंग SSH क्लाइंट, जब गया तभी तो सर्वर ने बोला ना पासवर्ड दिखा तेरा. इससे मेरे को आइडिया आया, तो मैं क्या कर रहा हूँ, गलत पासवर्ड डाल रहा हूँ. तो सेम मैसेज आया कि नहीं, परमिशन डिनाइड. अब तुम थोड़ा जज्बात में आ गए, तुमने बोला गूगल पे ही लॉगिन मार देता मैं, वो भी बिंदास. तो देखो SSH क्या कर रहा है तुमको पता है क्या, पीछे नहीं पता है. तो तुम्हारे को सोल्यूशन चाहिए, उसका सोल्यूशन अभी तुम्हारे सामने है कि मेरी गाड़ी अटकी तो किधर. तो ये बोल रहा है सी आई एम कनेक्टिंग टू google.com at this particular IP address on port number 22, है ना. सही. सो IP तो मिल गया उसको नेटवर्क के ऊपर, नेटवर्क लेयर पे, लेकिन उसको SSH का सर्वर नहीं मिला दोस्त. You know why?
बिकॉज गूगल इज क्लेवर. अगर उसके पास होगा भी ना तो वो पब्लिक एक्सेस उसका रोक के रखेगा. पब्लिकली कैन यू एक्सेस दैट? बोलेगा नहीं नहीं, आई विल अलाउ ओनली माई इंटरनल पीपल बिकॉज आई एम गूगल $1 billion कंपनी. दैट्स हाउ इट वर्क्स फॉर देम. बट तुमको खाली इतना समझ में आया कि यस, नेटवर्क का लेयर अलग होता है, एप्लीकेशन का लेयर अलग होता है. अब बीच में ट्रांसपोर्ट और सेशन लेयर जो है ना वो है ऑफ कोर्स, लेकिन तुमको ज्यादा देखने नहीं मिलेगा. तुम्हारा काम जो होगा वो इसी लेयर पे काम होगा. ओके, बट वी विल कम टू दैट लेयर ऑल्सो सम टाइम लेटर, है ना, जैसे तुम्हारा मेच्योरिटी लेवल थोड़ा हाई होगा. नाउ आई वांट टू फाइंड आउट व्हाट इज माय पब्लिक आईपी एड्रेस. सो आई विल टाइप curl if config .co. So now I came to know what is my public IP address. This is my public IP address. Okay. I want to know what is my private IP address. So I will type if config. If you are getting confused, then I will type ETH0. How did I come to know कि ETH0 इसका इंटरफेस है? यहाँ लिखा है देखो, isn't it? तो ये तो उसका लूप बैक एड्रेस है और ये उसका प्राइवेट आईपी एड्रेस है. उसका मतलब किसका? अरे भैया ये मशीन का, सी दिस वन, है ना, इस मशीन का प्राइवेट आईपी एड्रेस. सो हाउ डिड आई कम टू नो दिस इज प्राइवेट? एंड दैट इज बेसिक नॉलेज. बेसिक हमारी दुनिया का बेसिक नॉलेज है कि ये 10.0.0, 10 मतलब खत्म, 10 मतलब खत्म, प्राइवेट. 127 मतलब खत्म, लूप बैक. और वैसे भी ये कमांड तुम्हारा, वो बोलते हैं ना, हम लोग वो ऑब्जेक्टिव एग्जाम देते तब सिलेक्ट करते हैं ना, 4 ऑप्शन है, ये तो हो नहीं सकता, इसके तो कोई चांस ही नहीं है. अब बचे दो में से तुक्का लगाना ही है. ये ज्यादा लॉजिकल लग रहा है, चल ये लगाते हैं. तो वो वाला लॉजिक है. इफ कॉन्फिग जो कमांड है, वो कमांड तुमको प्राइवेट इंफॉर्मेशन नहीं लाके दे सकता है बिकॉज दैट इज इंटरनल. गेटिंग द पॉइंट? तो मेरे पास अभी देखो क्या क्या है. आई हैव प्राइवेट आईपी and I have a public IP. So if I capture the public IP address and if I type who is this IP, तो ये IP किसका निकलेगा? You tell me. What do you think? ये पब्लिक तो है, AWS, है ना. इसका मतलब इसको खरीदा किसने है? AWS ने खरीदा है. सी, AWS ने इसको खरीद लिया है. और इतना नहीं है, बहुत सारी रेंजेस है उसकी. तो कैसे पता चलेगा कितनी रेंज है? अरे बहुत रेंजेस है, जितने डेटा सेंटर उतनी रेंज. हर डेटा सेंटर के लिए एक रेंज खरीद के रखा है. तो ये जो है उसकी मुंबई के डेटा सेंटर के लिए ये रेंज है. वी अंडरस्टैंड दैट दिस इज Amazon डेटा सर्विसेज इंडिया. सी, और 2017 में इसने रजिस्टर किया है इधर, इमेजिन, पवई में, वो भी. सी, इसका ऑफिस है. So many information you're getting from the registrar, isn't it? Okay, so now you have the public IP address. You also have the private IP address. So what I'll do is watch. Because SSH, अरे यार ये पट्टी का कमाल है ना. So I will need that IP address once again. This one. So let's copy this. यही था ना वो जिसे मैंने who is किया था. Yes. So this time I am actually doing SSH.
See, I'm doing SSH to this particular public IP address. So when I am doing SSH from my Ubuntu machine, तो IP बराबर है कि नहीं है? चलो एक नजर और देख लो. See, here it is. This is the IP. IP corrected. So I captured the IP once again. And this time I'm going to Apple Macintosh just to check SSH IP address. अभी थोड़ी देर पहले हम लोग लेयर की बात कर रहे थे. कौन सी? नेटवर्क लेयर, एप्लीकेशन लेयर, सेशन लेयर एंड ट्रांसपोर्ट लेयर. अब क्वेश्चन ये है कि क्या हो रहा है इधर, अटक किधर रहा है ये? तो उसका जवाब, आई एम गोइंग बैक हियर, inbound rules. Okay, I am on inbound rules. I am going to show you कि यहाँ मेरे पास है ना RDP अलाउड है. SSH अलाउड है क्या? नहीं. SSH is only allowed from the private network. यहाँ देखो लिखा है private network. पब्लिक नेटवर्क से SSH अलाउड है क्या? नहीं है. तो मैंने कौन से लेयर पे इसको ब्लॉक किया? क्या है ना, सेशन अगर तुमको थोड़ा भारी लगेगा ना तो तुमको वापस से 2 से 3 बार 5 बार सुनना पड़ेगा and it will become damn easy. Relax. So I will put SSH over here, okay, which means I'm opening the port and I'm opening this port from my IP, or should I open it from anywhere? So this time I will do it for anywhere. Chalo, tumhari khushi ke liye. I'm going back. Then I'm doing up arrow. देखो कितनी खुशी से बोल रहा है वो, मुझे मिल गया. सो मैं उसको बोल रहा हूँ यस, परमिशन डिनाइड. मैंने बोला ना उसका टेंशन नहीं लेने का, है ना, वो अपन एक झटके में रिजॉल्व करेंगे. अभी अपना ध्यान किधर जाना चाहिए? ओ माय गॉड, layers, isn't it? Okay, so now I'm coming back here, up arrow. पिछली बार क्या बोला? कनेक्शन टाइम्ड आउट. अभी क्या बोल रहा है? मुझे मिल गया. See, permission denied. That's absolutely fine. We are okay with that. An application is rejecting. We are okay with that. तो ये जो काम कब आता है हमको पता है? ट्रबल शूटिंग के टाइम पे. तो कुछ एरर मैसेजेस होते हैं, या तो तुम एक्सपीरियंस हासिल करने के लिए बैठो आधी जिंदगी हमारे जैसा, या तो ध्यान से सुनो, रिपीटिशन, रिपीट इट अगेन एंड अगेन एंड अंडरस्टैंड. अच्छा ये आया, इसका मतलब इधर, तो इसको क्या है, प्रैक्टिस करना पड़ता है ना, मल्टीपल टाइम्स. यू हैव 5 days प्रैक्टिस every day at least 10-20 times, and it is free, absolutely free. You will be able to do it in the data center. Okay, now the question is कि तुमको हमने EC2 तो सिखाया नहीं है, फिर कैसे आएगा तुमको? That's a good question. We will do that very soon. But अब तुमको खाली क्या याद रखना है? लेयर होते हैं भाई, बस. मैं खुश है, तुम इतना समझ में आया ना. हाँ, लेयर होते और ये लेयर के ऊपर अटकते तो ये एरर आता है. Okay, now for example, suppose if I type, okay, ping 127.5.5.5, तो ये पिंग करेगा कि नहीं करेगा? यस और नो? वन 127 के बाद कुछ भी आने दे भाई, कुछ फर्क नहीं पड़ता उससे.
है ना, काय को कंफ्यूज होने का जबरदस्ती। ओके, नाउ लेट्स मेक यूज ऑफ समथिंग। अभी तुमको याद है कि हमारे पास यहाँ पे एक आईपी है, क्या नाम से, अजीज, है ना। सो इफ आई से SSH अजीज, तो उसको एक्चुअली मिल गया। तो यू टेल मी, इन दिस केस व्हाट इज अजीज? होस्ट नेम, अमेजिंग, क्या बात है यार। देखा, जैसा नाम वैसा काम, आकाश। Host name, that is the host name. Perfect. Okay, so if I type ping www.aziz.com, so what is it? DNS, domain. Yes, you can call it a domain. It's a domain. Okay, अभी किसी ने बीच में बोला FQDN, ले अजीज ने बोल दिया। FQDN किसको बोलते फिर? FQDN बोलते, you must have 3 qualifications. 1, IP address, DNS address, होस्ट नेम। तीनों चीज जब है, इसका मतलब इट इज अ फुल्ली क्वालिफाइड डोमेन नेम। उसको क्या बोलते हैं? FQDN। तो ये जो DNS का जो एड्रेस है ना, दिस कैन बी इंटरनल ऑल्सो, इट कैन बी इंटरनल एज वेल। फॉर एग्जाम्पल, सपोज इफ आई से sudo nano etc host, and if I come back here to tell you कि दोस्त ये जो है ना, धोखे में मत आना, दिस इज जस्ट a local address, okay, and I say ping Aziz, तो कर रहा है ना वो भाई। .com के लिए तुमको धोखा हो रहा था ना, लोकल के लिए तो कोई धोखा नहीं है। एग्जैक्टली, दैट्स द रीजन इंडस्ट्री में हम इसको क्या बोलते हैं? लोकल होस्ट। सो इफ आई से पिंग लोकल होस्ट, सो नाउ द क्वेश्चन इज कि मेरे पास एक क्लाइंट है और एक सर्वर से मैं क्या कर रहा हूं? कनेक्ट कर रहा हूं। क्लाइंट कौन है? SSH। सर्वर भी SSH ही होगा, definitely, that's how it is. Now it is not allowing you to connect, it is asking you to give the chavi, isn't it? The key. So what we'll do is we'll type SSH localhost. It doesn't have the key. Now I want the key, so I will create the key. I have multiple options in that case. Option number 1, तुमको थोड़ा कंफ्यूज करता हूं मैं, चलो, ताकि तुम सीख सको। When you look at this interface, okay, तुमको एक चीज याद रखना, टेक्निकली this interface belongs to the Zen server. तुम बोलते हो ये AWS बोलते हो। अरे भाई, AWS का है, बनाया AWS ने, कंपनी ओनरशिप इसका है, लेकिन एक्चुअली पीछे जो टेक्नोलॉजी चल रही है उसका नाम क्या है? Zen सर्वर। देखने का, LSCPU, ये देखो, वर्चुअलाइजेशन टाइप फुल, isn't it? तुम कौन से CPU पे काम कर रहे हो? Even if you're working on a micro instance, you're actually working on a Xeon. क्या जनरेशन है यार, यकीन नहीं आता मुझको तो कभी कभी। व्हाट अ जनरेशन। फिर भी रोते रहते, रोतड़े, जब देखो तब रोते रहते। जॉब मिल गया तो भी रोते, जॉब नहीं मिला तो भी रोते। आदत सी हो गई है, हद होती है। और ये लड़ेंगे हमारे देश की लड़ाई, ये है जवान, रोतड़े। सो लेट्स कम बैक हियर। दिस इज
a Zen server interface. अब इस Zen server में तुमको क्या मिला है? 2 वर्चुअल मशीन, एक विंडोज है और एक अबंतु है। 2 मशीन मिले कि नहीं मिले? यस। इसके जितने भी क्राइटेरियाज है वो सब फुलफिल हो रहे हैं। See, once upon a time, I used to take Linux installation का टॉपिक, वो स्किप हो गया। अभी कितने साल हो गए उसको मालूम है? 5-6 साल हो गए, खत्म कर दिया वो। किसकी वजह से? क्लाउड की वजह से। अननेसेसरी मुझको 2 से 3 टॉपिक लेने, 3 बल्कि ज्यादा यार टॉपिक्स लेने पड़ते थे। तो उसमें ना एक फायदा होता था, आई एग्री विद दैट। You actually used to come to know this root device and this block device and all this. You used to understand that this is ETH0, ये क्या होता है, एटलीस्ट ये सब पता चलता था उसमें। लेकिन अभी तो तुमको सब लिखा हुआ मिल रहा है। पहले तो मैं बोलता था खाली और दिखाता था CLI के ऊपर। नाउ यू जस्ट हैव टू लॉग इन एंड सी दीज आर द components, number of CPUs that you are going to get in this and everything else. तो अभी तुमको एक लेयर मैंने बताया। तो क्वेश्चन ये है कि Zen सर्वर ने सिक्योरली तुमको क्या किया है? 2 मशीन दिया है, तो उसकी चाबी कहीं ना कहीं तो रखा होगा उसने। यस, यहां रखा है, देखो, किसी को बोलना मत, मैं तुमको बता रहा हूं, यहां उसने चाबी रखा है। और वो जो अपने को पूछता है ना फिंगरप्रिंट, वो देखो इसका फिंगरप्रिंट यहाँ पे, ये है इसका फिंगरप्रिंट। और ये टाइप कौन सा है? देखो इधर RSA दिख रहा है तुमको? Amazing. Can I create a key pair here? And if I do that, will that be a key pair for my upcoming machines? So the answer is yes. Yeah, you can. I can choose the algorithm, RSA or blah, blah, blah. Okay. Now, similarly, मैं जब इस Linux machine को login करता हूं, ये वाले Linux server को, तो इसके लिए चाबी Linux को बना के देना पड़ेगा ना। तो सी Zen सर्वर के लिए Linux खुद क्या है? एक सर्वर है। और Linux सर्वर के लिए SSH क्या है? एक सर्वर है। भाई थोड़ा रिकॉर्डिंग 2 से 3 बार सुनोगे, ये सब हौच पौच समझ में आ जाएगा। अब तुमको कौन बोला 2022 में आने के लिए? थोड़ा जल्दी आने का था, 2012 में आने का था। अब आए तो मैं क्या करूं, लेयर इतने सारे बढ़ गए। अब मैं तो बता रहा हूं तुमको, आई एम जस्ट शेयरिंग द लेयर्स विथ यू। यू जस्ट हैव टू अंडरस्टैंड दीज आर द लेयर्स so that you have the supremacy over the system. You will know, तुम जब देखोगे बोले नहीं ये इस लेयर का नहीं है, तो एक काम कर, वो कंसोल खोल, मैं तेको बताता हूँ क्या करने का है। देखा, पावर आया तुम्हारे पास ऑटोमेटिक। सो आई एम गोइंग टू टाइप SSH एंड टैब। देखो मैं टैब टाइप कर रहा हूँ 2 बार, तो ये मुझको बोल रहा है कि देख तूने ये तो ऑलरेडी यूज किया है, इसमें SSH ऐड भी यूज कर सकता है, एजेंट भी यूज कर सकता है, जो हम आगे जाके करने वाले हैं। तू अभी फिलहाल के लिए SSH कीजेन भी यूज कर सकता है चाबी जनरेट करने के लिए। तो से फॉर एग्जांपल इफ आई डू SSH कीजेन, okay, and if I do create key pair, will it be the same or different? What is the difference? भैया ये तुम्हारे Zen सर्वर के लिए है, ओके, और ये तुम्हारे Linux सर्वर के लिए है। तो Linux में तुम्हारे पास SSH का सर्वर है, उसके लिए तुमको चाबी बनानी पड़ रही है। यहाँ पे तुम्हारे पास Linux का सर्वर है, तुम उसके लिए चाबी बनाने वाले हो। See, so I'm going to hit enter. I can actually go ahead and type here, है ना, -t मतलब type RSA and blah blah blah, but I'm not doing that. Why? ताकि तुमको दिखाऊं कि by default
ये बोल रहा है कि आई एम गोइंग टू जनरेट अ पब्लिक प्राइवेट RSA की पेयर। पेयर का मतलब क्या होता है? ताला आणि चावी, ताला और चावी साथ में। तो ये बोल रहा है मैं ना ये एड्रेस पे रखने वाला हूं। तो पहले ताला बना कि चावी बनी? तो उसका जवाब, पहले ताला बना, दिस इज ताला। तो तुम्हारी जगह पे कोई CTO होगा तो बोलेगा ना प्रूव इट, और मैं उसको बोलूंगा यस आई विल प्रूव इट टू यू, डोंट वरी। सो आई एम गोइंग टू हिट एंटर। तो ये बोल रहा है देख ताला और चावी, लेकिन चावी को तेरे को वो धागे में बांध के गले में पहनने का है क्या? तो मैं उसको बोला नहीं, नहीं, 2 बार बोलना पड़ा उसको। पास फ्रेज का मतलब क्या है? डू यू वांट टू कीप इट सेफ बाय प्रोटेक्टिंग योर चावी? तो मैंने उसको बोला कि नहीं, नॉट रिक्वायर्ड फॉर नाउ, ओके, बिकॉज ये कोई नासा का प्रोजेक्ट नहीं है। ओके, योर आइडेंटिफिकेशन हैज बीन सेव्ड। तो वो क्या बोल रहा है, तेरा ताला इधर है ये एड्रेस पे, और तेरी चावी, और यहाँ लिखा हुआ है देखो ना, चावी वो इधर है, सी। और ये है वो फिंगरप्रिंट, यू सी, एंड दिस फिंगरप्रिंट इज क्रिएटेड फॉर दिस एड्रेस। खत्म। ओ अच्छा, ये क्या है पूछने, समझना चाहते हो तुम? तो जो बेचारे मैकेनिकल ग्रेजुएट्स हैं उनको क्यों परेशान करने का, टेंशन नहीं लेने का, ये अल्गोरिदम है। इसका शॉर्टकट में मतलब होता है यू विल नीड अ सुपर कंप्यूटर टू ब्रेक दिस अल्गोरिदम, because this is 256 bit, and your supercomputer will take at least 2 months time to break it. ठीक है, खत्म। तो अभी मेरे पास चावी है, so I'm going to do SSH localhost। भाई चावी बन गई, फिर क्यों ऐसा? परमिशन डिनाइड। ओके, चावी उधर पड़ी है ना, मतलब चावी पड़ी हुई है एक जगह पे। तो ऐसी बात है तो मैं चले जाता हूँ तुम्हारी खुशी के लिए। उसने क्या बोला था, .ssh के अंदर चावी है, so this is the चावी and this is the tala, okay, and that actually means if I want I can use this chavi like this, ssh hyphen I id localhost। लो, फिर परमिशन डिनाइड। अब क्या हो गया, देखो क्या है, पप्पा ने तुम्हारे को क्या दिया है मालूम है? चाबी हाथ में पकड़ने को बोला, तुम गए ताला खोलने को सीधा। पप्पा ने ऑथराइज किया क्या तुमको? पप्पा ने बोला क्या खोलने को? नहीं ना। नाउ व्हाट यू नीड टू डू इज you need to first look at the chavi over here in this authorized keys. So it is just a file. Linux actually, अगर तुम ऐसा सोचोगे ना, it is just a file, and that file has to be somewhere, and that address can be found. उसके लिए क्या commands है? Where is, which, who is, and blah blah blah. आगे जाके हम लोग और देखेंगे. But for now, ये क्या बोल रहा है कि देख ये वाली जो चाबी है ना, अगर तू इससे आएगा तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि इसका फिंगरप्रिंट मेरे पास ऑलरेडी है इन द नोन होस्ट। बट अब तू नवी चाबी लेके आया ये वाली, ओके, सो वेयर इज दिस की? तो उसका सही जवाब ये है कि दैट की इज समवेयर ऑन माय सिस्टम इन द डाउनलोड्स फोल्डर, हियर इट इज, सी। तो वो मैंने पुट्टी से कनेक्ट करने के लिए यूज किया था, तो कनेक्ट हुआ था कि नहीं? हुआ था। बट नाउ आई वांट इट टू कनेक्ट इंटरनली। इंटरनली मतलब, say you have a client and you have a server. So I want that client and server to connect internally, मतलब मशीन के अंदर ही अंदर। तो अभी इसे चक्कर आ रहा है कि नहीं आ रहा है? आ रहा है, इसीलिए तो उसको लूप बैक बोलते हैं ना,
अरे लूप बैक का मतलब ही ये होता है ना, गोल 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 मटोल, चक्कर आना कंपलसरी. Okay. But if you understand like this, client and server, server and client, when they both communicate with each other, that becomes goal goal chakkar. The only difference is they need one IP address, and that IP address has to be either private or public. In this case, you don't have either. You have a loopback address. This is why chakkar. So अब हमको करना ये है, अंडरस्टैंड करना ये है कि this particular key, okay, I'm going to authorize it. So पहले मुझको क्या करना पड़ेगा, कैट चावी तुमको दिखाने के लिए. तो देखो ये जो चावी ऊपर प्रोटेक्ट लिखा है इधर, और ये जो चावी है इस पे ये लिखा है, क्योंकि अभी हमने हमारे सिस्टम से जनरेट किया है. तो इफ आई आस्क यू, ये किसने जनरेट किया है, सो व्हाट इज योर आंसर? zen सर्वर ने. वेरी नाइस, एक्सीलेंट. AWS, ओके, इट्स ओके. AWS खाली एक ही चीज जनरेट करता है, वो है बिल. बिल बिल, दिल धड़काने वाला बिल. ये चावी zen सर्वर की है. ओके, सो ये चावी किसने जनरेट किया, ये वाली. क्या आंसर है? लिनक्स. क्या बात है, अमेजिंग अमेजिंग. नाउ व्हाट आई डू इज, बिकॉज देखो जब पिछली बार मैंने बोला कैट करने के लिए, तो उसने मेरे मुंह पे कैट किया है. ये इसको प्रिंट बोलते, प्रिंट मतलब स्क्रीन के ऊपर प्रिंट किया. अब मैं इसको बोलूंगा प्लीज प्रिंट दिस फाइल, है ना, बट प्रिंट करेगा तो क्या करेगा, अपेंड करेगा. इसके लिए मैं 2 बार रीडायरेक्ट दूंगा उसको, इन ऑथराइज कीज. तो सपोज अगर मैंने आई फॉरगॉट this redirect, then it will delete this particular key and it will override, which I don't want. I want to append, मतलब इसके बाद में वो चाहता हूं कि वो ये चावी लिखे, isn't it? So let's hit enter and see if this works. अब उसने क्या बोला, now बेटा you are authorized to use this चावी. तो ये सच बात है क्या? Let's find out. SSH कौन है? क्लाइंट. क्लाइंट जाएगा किधर, सर्वर के पास. जाने के लिए क्या चाहिए, आईपी एड्रेस. बराबर. तो मैं इसको बोलूंगा आईपी तू रिजॉल्व कर ले डीएनएस से, मैं तेरे को ह्यूमन एड्रेस देता हूं. तो रिजॉल्व किया कि नहीं किया? किया ना. करने के बाद तुमको क्या बोला, वेलकम टू अबंतु. कुछ लोगों ने मिस किया है ना, कोई बात नहीं. सो तुम जिन लोगों ने मिस किया उनको डॉक्यूमेंटेड प्रूफ दिखा रहा हूं. एग्जिट. Connection to Aziz is closed. So what is Aziz? It is a host name. जब तुम प्रैक्टिस करोगे तो बोलो, it is a host name. What is Aziz? It is a host name. What is localhost? It is a host name. तुम अपने नाम का बनाओ, host name. तो confusion गायब. Okay. Now I'm connecting once again. Watch. SSH मेरा client है, मैं client को बोल रहा हूँ, please connect to localhost. Now I'm going to hit enter. This time I'm going to type -v so that you can see what happened in the background, isn't it? Here they go. Client input global request, blah, blah, and blah. तो यहां से इसकी कहानी स्टार्ट होती है. यहां से ये बोल रहा है कि मैंने ना ओपन SSH 7.6 वर्जन 7.6 यूज किया. ओपन मतलब फोकट. ओके, इसको सिक्योर करने के लिए मैंने सॉकेट लेयर यूज किया है SSL का. और ये किसके लिए है, मतलब इसकी जो रिपोजिटरी है वो कहाँ पे अवेलेबल है, Ubuntu blah blah blah. Okay, reading configuration data. Indirectly it is telling you कि the first file that I read is etc ssh
config. This is the first file I'm going to read. So that means there is all the configuration written in this. ये बोल रहा है मैंने ना उसमें ये लाइन नंबर 19 अप्लाई किया और बाकी सब भी अप्लाई किया जो डिफॉल्ट है. एंड आई एम कनेक्टिंग टू लोकल होस्ट एज यू रिक्वेस्टेड. तो मैंने उसके लिए आईपी एड्रेस रिजॉल्व किया. तो ये तुमको ये बता रहा है कि ये आईपी एड्रेस रिजॉल्व किधर से किया? नहीं बता रहा है ना. इट इज सपोज टू टेल यू कि ईटीसी होस्ट से रिजॉल्व किया, बट वो बता नहीं रहा है. यू नो व्हाई? बिकॉज इसमें लिखा है वो. और वो बोल रहा है कि पोर्ट नंबर 22 पे मैंने लॉगिन किया, कनेक्शन एस्टैब्लिश्ड. एंड देन मैंने इतनी दुनिया भर की चाबी ढूंढ ढूंढ के थक गया. उसके बाद मुझको मिला तो क्या मिला? ऑथेंटिकेटिंग टू लोकल होस्ट पोर्ट नंबर ब्ला 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 एज यूजर ubuntu एंड देन ब्ला 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 सब दुनिया भर का एल्गोरिदम. ओके, सी एल्गोरिदम. ओके, क्लाइंट एंड सर्वर कम्युनिकेशन स्टार्टेड. होस्ट का नाम क्या है? लोकल होस्ट. तो अगर मैंने यहाँ पे अजीज टाइप किया होता तो क्या लिखा होता था? होस्ट का नाम अजीज. ओके, ये बोल रहा है फाउंड द चावी. उसको चावी मिल गई. नोन होस्ट में उसने ऐड किया और क्या किया? तुम्हारा सर्वर का जो कनेक्शन है वो चालू कर दिया, मतलब सर्वर को कनेक्ट कर दिया. टेंशन मत लो, खाली मतलब समझ लो. तो उसको ये चावी जो है कहीं ना कहीं ताले में लगाना पड़ेगा कि नहीं? बराबर है. तो यहाँ लिखा है देखो, ऑफरिंग पब्लिक की. किसको ऑफर कर रहा है? ताले को. ताला किधर है? ये एड्रेस पे. तुम ऐसा बोलते क्या? तुम बोलते ताले में चाबी लगा रहा हूं मैं. आई एम ऑफरिंग द की टू द ताला. आय है क्या लैंग्वेज है, प्रोफेसर वाली. ऑथेंटिकेशन सक्सीडेड. ओके, ऑथेंटिकेशन सक्सीडेड मतलब जैसे ही मैंने ताले में चाबी लगाया, ऑथेंटिकेशन सक्सीडेड. Authenticated to localhost at blah blah blah. Client session begins. मतलब आजा वाट लगा दे सिस्टम की. क्लाइंट सेशन begins. फिर वो हमको बोल रहा है कि मैं तेरे जो दूसरे जो कंपोनेंट्स है, environment setup वाला, I am sending the language blah blah blah. Welcome to Ubuntu. Isn't it? So say for an example, if I type SSH Aziz, oh, hyphen VVV Aziz. So I'm once again connected. However, this time मैंने VVV 3 बार जो टाइप किया तो उसने मुझको इन्वायरमेंट्स भी बताना शुरू किया. थोड़ी सी ज्यादा इंफॉर्मेशन. पहले ही सर उबल रहा है और काय को उबल रहे भाई, है ना? टेंशन नहीं लेने का दोस्त, खाली ये देखने का. तुम थोड़ी कुछ कर रहे हैं यार, करने के लिए तो वो गवंडी लोग ने सब करके रखा है ऑलरेडी. You don't have to worry about this. See, now detail has increased. See, so much it has increased. In fact, तुमको एक चीज और बता रहा है, resolving. देखा तुमने? पहले बताया था क्या? ये नहीं बताया था ना. अब उसने वो भी बताया. That's exactly how it works in the background. अभी तुमको समझ में आया कि मेन फ्रेम ऑपरेटिंग सिस्टम है तो बहुत पावरफुल, लेकिन दिखता बहुत सिंपल है ना. पावरफुल लोग ऐसे ही रहते, बहुत सिंपल रहते, सादे सादे. यस, वो फोकटिए चिल्लम चाली करते हैं, फोकटिए. दैट्स हाउ इट इज. नाउ एक कॉन्सेप्ट. कौन सा वाला? नाउ आई एम एक्चुअली लॉग्ड इन टू अ सर्वर. नाउ क्वेश्चन इज, दिस पर्टिकुलर सर्वर इज राइट हियर ऑन द सेम मशीन. एक ही मशीन है, उसी में मेरा क्लाइंट है, उसी में मेरा सर्वर है. सो से फॉर एग्जांपल, इफ आई टाइप एग्जिट, देखा तुमने?
मेरा एग्जिट कितना खतरनाक था, क्लाइंट सेशन क्लोज्ड, कनेक्शन टू अजीज क्लोज्ड, है ना। अभी ये जो बैकग्राउंड में हो रहा है ना, विंडोज में डमरू देखते हैं हम लोग, डमरू नहीं, अभी डमरू नहीं, अभी डोनट है, डोनट मीठा मीठा। Nowadays they show you donut, but in the world of Linux it shows you everything that it does in the background. It is verbose. That's the reason most people they like to use Linux. Okay, अभी एक एग्जिट और टाइप करता हूं मैं। ओके किधर गया यार, एक एग्जिट और, एक एग्जिट और। सो मेरे जितने भी सेशंस थे सब बंद हो गए, isn't it? Okay, now I am connected here to the next one. Now the question is, because you are able to communicate, मतलब तुम you are able to communicate, तो उसका कुछ यूज होगा कि नहीं होगा? हाँ होगा, डेफिनेटली होगा, नहीं होना चाहिए। There is a great use of client and server communication. So एक question है, when I say my client and server is able to communicate, you can actually say passwordless, but I don't call it a passwordless because it's internal system. So there is no password in first place. But there is one point we said कि ताला जो है वो proof करना था ना हमको. So let's go back to SSH quickly. And then I am going to delete ताला. अब मैं जैसे SSH करूंगा तो तुमको वो offering याद है? Offering, yes. I will say Aziz permission denied. तो तुम्हारा होमवर्क है, ताला डिलीट करने के बाद when you type -vvv and then type your local host, whatever it is, you will get to see वो offering में गड़बड़, isn't it? तो you have that verbose वाला feeling, यार सब बताता है मेरे को यार, बीवी हो तो ऐसी, है ना, सब बतावे अपने को। एडमिनिस्ट्रेटर लोग को ऐसा पसंद है जो सारा इंफॉर्मेशन रिवील करे कि यस दिस इज हाउ इट इज, नो सीक्रेसी, ट्रांसपेरेंसी। वो हस्बैंड भी हो तो ऐसा, आई वुड से दैट। जज्बात में मत आना, ऐसा मतलब रियल लाइफ में नहीं चलता ऐसा। Okay, so I deleted the Chavi also because it's of no use, which means I have to create another Chavi, isn't it? SSH key gen. See, so this time we created one more key. It has another Tala as well. I have to authorize this once again. Remember that. तो मेरे को authorize करने के लिए क्या करना पड़ेगा? चावी redirect करना पड़ेगा किसमें? Authorize key के folder में. Once it is done, I will say SSH localhost. अभी मेरे केस में localhost का नाम हमने क्या रखा है? Aziz. You are locked in. मतलब, say you have two logins. If you're getting confused, to remove that confusion, one login, तुमने एक लिनक्स का सर्वर लिया ये वाला, तो तुमने इसमें लॉगिन किया, तो वो लॉगिन कौन सा लॉगिन था? SSH लॉगिन था। लेकिन वो लॉगिन तुमको दिया किसने? वो लॉगिन तुमको दिया इस चाबी ने। ये चाबी किसके कंट्रोल में है? जेन सर्वर के। जेन सर्वर ने तुमको लॉगिन दिया किसमें? लिनक्स में। अब लिनक्स ने तुमको लॉगिन दिया किसमें? वेयर इज दैट? हियर इट इज, SSH सर्वर में, लोकल मशीन के SSH सर्वर। अच्छा, now the question is, can you do this on
another machine? So the answer is yes, you can. लेकिन एक क्वेश्चन है, अब ये क्वेश्चन अराइज किधर से हुआ वो देखो जो मैं पूछ रहा हूं. The question is very simple. I'm going to Hadoop, Apache.org. Okay, I'm going to documentation. So let's take anyone for now. I am going to single node setup. So the moment I click on single node setup over here, it says single node cluster. अजीब नहीं लग रहा तुमको? क्या मुसीबत है यार. ये असल में एक भाषा है जो तुमको सीखनी पड़ेगी, ओपन सोर्स की भाषा. Why they call it a single? तो सिंगल इसलिए बोला उसने कि ये जो सिंगल अबंतु मशीन है, सिंगल है कि नहीं, है ना, एक ही मशीन है. क्या बोलते हैं इसको? स्टैंड अलोन. लेकिन यहां पे क्या लिखा है? नोड. क्या लिखा है इधर? नोड. माय गॉड, single node. How is that possible? Why not? It is possible. When I say SSH localhost, तो ये उसको कनेक्ट करता है, yes or no? So the answer is yes. So I told you, any device that is connected to network is what? Node. So now you have a single and you also have a node. तो सपोज मैंने अगर ये कनेक्ट करने की एबिलिटी मेरी चली गई, so will it remain a node? So the answer is no. अब बचा क्या? अब बचा क्लस्टर. सिंपल. सिंगल खत्म, नोड खत्म, बचा क्लस्टर. अब क्लस्टर क्या होता है ये हमको देखना पड़ेगा. यस. हाँ, लेकिन एक बात है, अगर यहां पे मैंने क्लिक किया स्टैंड अलोन ऑपरेशन, ओ माय गॉड, ये दिख रहा है तुमको? स्टैंड अलोन ऑपरेशन. फिर उसके बाद लिखा है सूडो डिस्ट्रीब्यूटेड ऑपरेशन, और उसके बाद लिखा है फुल्ली डिस्ट्रीब्यूटेड ऑपरेशन. टेंशन नहीं लेना. स्टैंड अलोन ऑपरेशन मतलब डेवलपर. सूडो डिस्ट्रीब्यूटेड ऑपरेशन मतलब स्टेजिंग, जो कोई यूज नहीं करता है, बेचारे गरीब लोग ने बनाए लेकिन यूज कोई करता नहीं मार्केट. ओके. एंड फुल्ली डिस्ट्रीब्यूटेड ऑपरेशन मतलब प्रोडक्शन. वापस बोलूं? डेवलपमेंट, स्टेजिंग, प्रोडक्शन. खत्म. तो आज हम लोग को क्या देखना है? हमको स्टैंड अलोन ऑपरेशन देखना है. यहां पे क्या लिखा है देखो? लोकल होस्ट. क्यों इतनी माथा पीती कर रहा था मैं लोकल होस्ट के पीछे? ताकि तुमको क्लस्टर दिखा सकूं और बता सकूं दोस्त हमारी दुनिया का क्लस्टर दिखता है इससे. सी, है ना? सो लेट्स हैव अ लुक. और बाद में ये फुल्ली डिस्ट्रीब्यूटेड पे हम लोग जाएंगे. डोंट वरी, रिलैक्स, आराम से. तो तुमको सिंगल और नोड तो समझ में आ गया, बचा क्या? क्लस्टर. नाउ द क्वेश्चन इज, you must have heard. If you have never heard, it's okay. है वैसे थोड़ा सा लेयर अपॉन लेयर्स. वो श्रेक देखा था ना, श्रेक, वो अनियन, लेयर अपॉन लेयर. इसके लिए थोड़ा कंफ्यूजन आता है. सो डोंट वरी. एंड उसको समझने के लिए थोड़ा सा टाइम लगता है, इसीलिए तो अपने इसमें पगार इतनी ज्यादा है, क्योंकि सबके बस का खेल नहीं है. सब लोग को लगता है कर लेंगे, लेकिन वो बहुत कम लोग हैं जो बेचारे कर पाते. 50% एक्चुअली. ओके. नाउ point number 1, I have a Linux kernel.
तो लिनक्स का एक नाम है मेन फ्रेम ऑपरेटिंग सिस्टम। तुमको पता है इसका क्या नाम है? हडूप। इट्स अ डेटा ऑपरेटिंग सिस्टम। तो दिस इज अ डेटा ऑपरेटिंग सिस्टम, दैट इज अ मेन फ्रेम ऑपरेटिंग सिस्टम। अब दोनों के दो अलग अलग कर्नल होने वाले हैं और दो कर्नल के झगड़े होंगे आपस में। माय गॉड, सो देयर हैज टू बी सम प्रीरेक्विजिट्स। देयर हैज टू बी सम प्रीरेक्विजिट्स। तो उसका जो पहला प्रीरेक्विजिट्स है वो क्या है? जावा। और उसका दूसरा प्रीरेक्विजिट्स क्या है? एसएसएच। ऐसा उन लोगों ने लिखा है। मैंने तुमको एसएसएच बताया एज फर्स्ट प्रीरेक्विजिट। नाउ व्हाट आई विल डू इज आई विल टाइप हियर पीएस। तो तुम सोच रहे हो ना व्हाट इज पीएस? ले भाई, आ गया तेरे सामने आंसर, पढ़ ले। रिपोर्ट अ स्नैपशॉट ऑफ द करंट processes. Okay, so I want to find out process of a particular origin. So I will say show me all. उसने मुझको सारे दिखा दिया। सी, अभी इतने सारे प्रोसेसेस अगर चलेंगे, देखो जेन का बस है, जेन का वॉच है। ओ हो, क्या बात है। AWS बहुत पैसे वाला है यार, है ना? सच में ये देख के समझ में आ रहा है ना। ओके, लेकिन प्रोसेसेस तो उसने बता दिया तुमको बहुत सारे। So what I'll do is I will find out AUX pipe grep, मतलब ढूंढ। क्या ढूंढ? JVM। तो उसने ढूंढ के मुझको बताया, देख दोस्त, JVM खाली है, कुछ नहीं है। Now some people, those who don't know what is JVM, first of all, JVM, what is JVM समझने के लिए हमको टाइप करना पड़ेगा JPS। तुमको याद है हम लोग ने कहानी PS से शुरू किया। PS मतलब प्रोसेसेस, JPS मतलब जावा के प्रोसेसेस। तो ये हमको बोल रहा है कि दोस्त तेरे को है ना ये इंस्टॉल करना पड़ेगा। क्या इंस्टॉल करना पड़ेगा? JDK, जावा डेवलपमेंट किट। तो एक क्वेश्चन है, उसका आंसर देखते हैं हम लोग। जैसे मैंने टैब मारा तो यहाँ पे 11 आ गया, देख रहे हो तुम? मैं वापस से जाता हूँ पीछे, JDK ऑटोमेटिक 11 आ रहा है। अब मैंने वापस से 2 बार टैब मारा तुमको दिखाने के लिए कि 11 का JDK का एक पैकेज है, ओके, JRE का एक पैकेज है, और यहाँ पे ये मुझको क्या बोल रहा है, हेडलेस का भी एक तेरे को पैकेज लगेगा, JDK headless, yeah, this one. In other words, for the newcomers, remember, JDK is for development. हमको उसकी जरूरत असल में नहीं है। प्रोडक्शन में क्या यूज होता है? JRE. Now the question, the relevant question you should ask, what is JRE? It is a runtime environment for Java. So is there a runtime environment for Linux? Yes. Is there a runtime environment for Zen server? Yes. Is there a runtime environment for network? Yes. Is there a runtime environment for Java? Yes. तो फिर कितना सोचने का क्यों? Let's install it. तो ये इंस्टॉल करने के बाद मुझको मिलेगा क्या? इसके इंस्टॉल करने के बाद मुझको मिलेगा जावा वर्चुअल मशीन। क्या मिलेगा? जावा वर्चुअल मशीन। इट्स सेइंग you need to update first because ये repository 2018 से किसी ने अपडेट किया नहीं है। तो मैंने उसको बोला ठीक है मैं अपडेट कर देता हूँ। Then I will
arrow, I will do up arrow once again and install the JRE. See, now it is downloading. है ना, it is saying 37 MB का है. डाउनलोड करने के बाद उसने इंस्टॉल भी किया. किसने? एप्टीट्यूड ने. कौन है एप्टीट्यूड? इंस्टॉलर. जैसे तुम्हारा EXE है ना, उसका इंस्टॉलर MSI है, माइक्रोसॉफ्ट इंस्टॉलर. बस इसका एप्टीट्यूड है और रेड हैट का यम है, सूजे का जिपर है. क्या तकलीफ है उसमें? Now I'm going to ask the same question. I'm not typing, I'm just doing up arrow so that तुम्हारी memories जो है ना, देखा बोल रहा है खाली है, JVM is खाली. But you remember we did JPS last time. तो उसने मुझको क्या बोला, तेरे को हेडलेस डालना पड़ेगा. तो अभी मैंने JRE डाला. तो इसका मतलब ये होता है कि मेरे पास है ना जावा वर्चुअल मशीन का एनवायरनमेंट तो रेडी है, लेकिन इस कमांड को रन करने के लिए मुझको एक पैकेज लगेगा, वो ये वाला है, जो मैं अभी इंस्टॉल नहीं करूंगा. क्यों? तुमको ये प्रूव करने के लिए कि JDK is not important in our case because we are not developing anything. JRE is only important. कभी कभी इंटरव्यूअर पूछ लेता है, बहुत रेयर सिचुएशन में they ask you. If they have a doubt, your age is less, they will ask you. Okay. कि JDK यूज होता है, JRE यूज होता है, कि हेडलेस यूज होता है, तो तुम बोलोगे JRE यूज होता है. That's it. तो हमने क्या किया है, एक पैकेज इंस्टॉल किया as what? As recommended, isn't it? Okay. Now my, देखो अभी मेरा एक fear है. I'm taking the risk. You know what is the risk? Risk is इसके अंदर जो मैंने जावा अभी इंस्टॉल किया, ये जावा कंपैटिबल है कि नहीं है मुझको पता नहीं, but I am taking the risk. Okay. Why am I taking the risk? Because अगर नहीं चला तो अच्छा है, बहुत अच्छी बात है, तुमको ये सेशन वापस देखने मिलेगा. हाँ मतलब कल यार, टेंशन मत लो इतना भी. Now I am going to Apache release archives. You know why? To make your life easy. So 0 वाला तो भूल जाओ, वर्जन 1 पे आते हैं, 1.2.1. Okay. Now in this case I have multiple options. I can use RPM 368 architecture. मतलब सिंगल कोर प्रोसेसर अगर तुम्हारा है 32 bit, you can use that. But आजकल 32 bit obsolete हो गया है, तो बचा क्या? 64 bit, isn't it? अब RPM मैं यूज नहीं कर सकता because I don't have Red Hat. Then you will say, why don't you use Deb? This one, Debian. तो तुम्हारे पास Debian तो है ना? हाँ Debian तो है, लेकिन उससे अगर इंस्टॉलर ने इंस्टॉल किया तो तुमको कॉन्सेप्ट कैसे पता चलेगा? हाँ ये बात सही है. तो मेरे पास एक थर्ड ऑप्शन बच गया है, इसको बोलते हैं रॉ इंस्टॉलेशन. ये वाला tar.gc. I just copy and come back to this terminal. अब देखो मैंने जो कॉपी किया है वो कहां से किया है? apache.org से कॉपी किया है. ठीक है ना, पॉइंट याद रखना. ओके. wget. Now I'm sure you all know what is wget by now. तो मैंने ना Hadoop का जो टारबॉल है उसको डाउनलोड पे डाल दिया है. See this? Which means we have downloaded the tarball, du-h 61 MB. अब करना क्या है, इसको अनटार करना है.
अब बहुत तकलीफ में जाने आने वाले बहुत सारे लोग, बट इट्स ओके। ये तो कुछ भी नहीं है, ये तो तुम आगे जाके हंसोगे इस टॉपिक के ऊपर। अभी ऐसे ऐसे बड़े बड़े भयंकर टॉपिक आने वाले हैं। ओके, सो हाइफन, व्हाट इज द फर्स्ट थिंग? इफ यू नोटिस यहाँ पे है ना जीजी लिखा हुआ है, मतलब ये गनजिप्ड है। सो मुझको क्या करना पड़ेगा? पहले अनजिप करना पड़ेगा। तो पहले हम लोग इस तरीके से अनजिप किया करते थे, उसके बाद अनटार करना पड़ेगा। टार बॉल है, तो मुझको क्या करना पड़ेगा? अनटार। तो एक्चुअली देखा जाए, जीजी के लिए जेड आना चाहिए ना पहले, फिर अनटार के लिए एक्सट्रैक्ट आना चाहिए, फिर वी वर्बोस एंड एफ फॉर फोर्सफुली, एंड देन वी था ना, वी वर्बोस। इसके लिए तुमको इतना सब दिखाया उसने कि भाई मैंने ये ना ये सब अनटार कर दिया, और नाउ द पोटला इज रेडी। वेयर इज द पोटला? हियर इट इज, this one. Now my question to you is Hadoop installed? So the answer is yes, it is installed. लगाना झटका? Yes. हमारी दुनिया में अगर ये मिल गया, ये इसका मतलब मैं इसके अंदर जा सकता हूं, और इसके अंदर एक बिन फोल्डर है, उसमें जा सकता हूं। See, I can go there and I can look at all the binaries and I can fire these binaries. It is working flawlessly, see? But this actually means कि दोस्त तुम्हारा जो इन्वायरमेंट है ना, लिनक्स का जो इन्वायरमेंट है, उस इन्वायरमेंट में हमने ये इंस्टॉल तो किया है बट डिप्लॉय नहीं किया है। देयर इज अ डिफरेंस, इंस्टॉलेशन एंड डिप्लॉयमेंट। तो मैंने डाउनलोड किया, अनटार किया, ओके। अब लिनक्स इस बात को मानता है कि नहीं, जो बात मैंने बोला तुमको, वो तुमको देखना है। से आई एम आस्किंग लिनक्स, वेयर इज Hadoop? Linux says I don't know actually. तो सपोज मैं इसको ये सेम क्वेश्चन पूछता हूं, वेयर इज JVM? तो मुझको बोल रहा है देख, यूजर लाइब्रेरी JVM में है। तो ये इंस्टॉल किसने किया था? अरे भाई, JVM इंस्टॉल किसने किया था? एप्टीट्यूड ने किया था, इंस्टॉलर ने किया था, इजंट इट? तो वो अपनी जगह पे पहुंच गया। अब एक क्वेश्चन है, ये जो जावा वर्चुअल मशीन जो है, एक सॉफ्टवेयर का नाम है ऑफ कोर्स, व्हिच क्रिएट्स अ वर्चुअलाइज्ड एनवायरनमेंट, इसीलिए उसका नाम क्या है? JRE, जावा रन टाइम इन्वायरमेंट। सो किसके कंट्रोल में है वो? ओरेकल के कंट्रोल में। ओरेकल इज थर्ड पार्टी, अग्री और डिसअग्री? थर्ड पार्टी, यस। अच्छा, तो अपाची जो है वो फर्स्ट पार्टी है कि थर्ड पार्टी है? वो भी थर्ड पार्टी है, एग्जैक्टली exactly. और लिनक्स को है ना ये बात ऑलरेडी पता है कि मुझको हदूप कहाँ ढूंढना चाहिए। तो मैं क्या करूंगा? आई एम गोइंग टू मूव MV, सो sudo MV यूजर लोकल हद, अभी ये नाम मैं खुद दे रहा हूं उसको, ओके, सो दैट आई कैन आस्क द क्वेश्चन, वेयर इज Hadoop? तो मैंने इसको क्या किया? सिर्फ मूव किया ना, फोल्डर को मूव कर दिया, तो मेरे एनवायरनमेंट में आया कि नहीं आया? अब कर्नल को ये पता चल गया है ना, कर्नल को ये पता चल गया, ये क्या पता चल गया? पाथ पता चल गया। क्या पता चल गया? कहाँ गया डॉलर अपना? सी, some people those who are wondering कि why it is saying no such file, तो उनको भी खुश करना पड़ेगा ना थोड़ा सा। ठीक है भाई, तू भी खुश हो जा।
ये बोल रहा है कि मेरा जो पाथ है वो जहां पे मैं चेक करता हूं environment variable, that is user local sbin, user local bin, user sbin, blah blah blah. तो ये सब यूएसआर में बोलता है कि मैं जाके ढूंढूंगा. तो इन्वायरमेंट मतलब पाथ हमने सेट कैसे किया? सेट वेट कुछ नहीं किया, खाली मूव किया. सेट था पहले से. हाँ, खाली मूव किया. तो तुम बोलेंगे ऐसे कितने इन्वायरमेंट है? हाँ, दैट्स अ गुड क्वेश्चन. तो लेट्स हैव अ लुक. सी, तो मैंने एक बार स्पेस बार दबाया, सारे के सारे तुमको इन्वायरमेंट वेरिएबल्स देखने को मिले. और टेंशन भी हुआ होगा. इफ आई वांट टू सेट अ लैंग्वेज इन्वायरमेंट, आई विल यूज दिस पर्टिकुलर वेरिएबल. बट फॉर नाउ तुमको इतना टेंशन लेने का नहीं है. तुमको खाली क्या चाहिए? डॉलर पाथ. हो गया, सेट हो गया, खत्म हो गई कहानी. लेकिन वो इन्वायरमेंट क्वेश्चन ये कि किसका था? वो था लिनक्स का. So the moment I say Linux, what comes to your mind? What should come to your mind? Amazing, kernel, है ना? लेकिन मैं जो काम कर रहा हूँ वो कहाँ पे कर रहा हूँ? मैं शेल के ऊपर काम कर रहा हूँ. आई एम वर्किंग ऑन अ शेल, है ना? सो मेरा जो इन्वायरमेंट है उसका नाम क्या है? bash. I am working on bash. See, this is the environment that I am working. So suppose if I say sh, so now my environment is sh. But if I say bash, this is my environment. तो मेरे bash को पता है कि लिनक्स किधर है? नहीं पता है. कैसे? देखो मैं टाइप करता हूँ हाडूप, तो बोलता है कमांड नॉट फाउंड. बट इफ आई गो देयर in that particular folder, user local hadoop, okay, I'm right now in the folder, and if I type hadoop, टैब मारता हूं तुम्हारी खुशी के लिए, because of sh. ठीक है? See, even tab is not working. You know why? Because I'm not in a bin folder. Okay, bin folder में आने के बाद मारना पड़ेगा ना यार, चाय का टाइम हो गया. Okay, see, now my tab is working, and now I hit enter. Is it working? Working. तो मेरे बैश को नहीं मालूम है, कर्नल को मालूम है. तो कर्नल ने तो काम कर रहा है मेरा, लेकिन उसके लिए मुझको मेहनत करनी पड़ रही है एक्स्ट्रा. तो सोल्यूशन क्या है? आई हैव टू सेट environment for my bash, and that can be done in dot bash rc फाइल. अब ये फाइल को थोड़ा संभाल के यूज करना है तुमको, क्योंकि ये तुम्हारा क्या है? शेल का इन्वायरमेंट है. इफ यू डू समथिंग रॉन्ग विद दिस, then make sure that you have a login privileges in root. Okay, because अगर bash को तुमने करप्ट कर दिया, bash rc को, तो you are dead. So in this case, what you can do is, because I want to save some time, okay, तो एक काम करेंगे, ये वाली स्क्रिप्ट तुम्हारे पास ऑलरेडी होगी. ओके, ये सब ऐसा भयानक क्यों दिख रहा है इतना?
क्योंकि आई एम गोइंग टू टाइप a lot of things from here. So अभी हम लोग कहाँ पर है, देखो इधर है bash rc में, isn't it? And I want to export this particular path, and you will tell me what is the mistake while I am pasting. क्या यार ये सब किधर से आ गए सब? Where is all this coming from? Yeah, इसमें mistake क्या है ये बताना है तो. We are exporting Hadoop prefix. We are not saying Hadoop home, we are saying prefix, which means include this bin folder as well. तो मैंने उसको $path एड्रेस क्या दिया उसको, Hadoop prefix. तो Hadoop prefix का एक्चुअली एक्सपोर्टेड एड्रेस क्या है, यूजर लोकल Hadoop. तो अभी इसके अंदर एक मिस्टेक है, वो क्या है, Java 11 है ना. अभी वेदर इट इज कंपैटिबल नॉट कंपैटिबल आई डोंट नो, बट एक बात तो कंफर्म है, this address has to be checked. So I will ask, where is Java? तो बोल रहा है इतना सब, तो मुझको किससे मतलब है, बाइनरी से. So I will say where, which Java. बोल रहा इधर है. बोला ठीक है भाई, चलो मैं चलता हूं. See, there is a easy way of finding out by a command called read link, which we will see little later. अभी हम लोग okay, बच्चों की तरह इसके अंदर जाएंगे. See, so many. My God. I realized. मैंने क्वेश्चन क्या पूछा था? Which JVM? मैंने which Java पूछा था क्या? हाँ. Where is JVM? User, because it's a folder that I'm looking for. Okay. मालूम होने के बावजूद इस तरीके से जाने का रीजन ये है दोस्त, कि तुमको ये पता चल गया PWD एड्रेस कॉपी कैसे किया था. ये देख लो. ठीक है. Now let's go back to nano.bashrc. Scroll at the bottom and see if the address is correct. Then you have to answer my question. Why do you have to mention this address? काम करते हैं, मैं नीचे पेस्ट करता हूं. चलो यार. What nonsense. वो क्या होता है मालूम है, कभी कभी वो VI आ जाता है दिमाग में, उसकी कोई की दब गई तो ये सब प्रॉब्लम कॉमन है. So now the path is correct. ठीक है ना. The question is, why should you tell where it is? And I will answer that, don't worry. Because as I told you, Hadoop will run on top of Java. The question is, why on top of Java? So that's a good question. अब एक चीज है, मैंने bash rc कॉन्फ़िगर किया तो मैंने यहाँ पे HAD टाइप किया और टैब मारा, चलना चाहिए था ना. क्यों नहीं चल रहा है? Because I have to reload bash. Only then it will reload bash rc. And now if I type HAD tab, it takes my command. So मैंने ये वाला जो environment है वो भी मैंने क्या किया, set कर दिया है. Now if I ask you, is Hadoop installed? You will say yes, but not configured. Oh my God. तो अभी तो क्या कर रहे थे हम लोग? हम लोग सिर्फ environment set कर रहे थे. क्या कर रहे थे?
environment सेट कर रहे थे. किसका? लिनक्स का. अभी तो Hadoop को टच भी नहीं किया है हमने. Now in order to do that, I have to set environment for Hadoop. So let's type nano user local Hadoop conf Hadoop environment.sh. अब ये क्या है ना, टॉपिक तो obsolete है. You know what is the meaning of obsolete? Obsolete. Outdated. टॉपिक आउटडेटेड है. कॉन्सेप्ट आउटडेटेड है क्या? नहीं. इसके लिए हम इसको ज्यादा टाइम नहीं दे सकते. आई हैव टू फिनिश दिस टुडे. Why? Because tomorrow I will convert this single node cluster into multi-node cluster, fully distributed cluster. And then whole week you can enjoy. देखो, I am going to paste it here. Okay, मतलब वो export का जो path है. But is that the best practice? तो इंडस्ट्री में कभी भूल से भी ऐसा करना मत. वैसे तुमको करने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी, बिकॉज यू विल बी यूजिंग क्लाउडेरा. बट सपोज अगर कभी जरूरत पड़ी भी, तो यू आर सपोज टू पेस्ट इट एग्जैक्टली हियर. तो यहाँ पे ना मैंने इसको अनकॉमेंट किया और यहाँ पे मैंने इसको पेस्ट कर दिया. से फॉर एन एग्जाम्पल मेरे पास पाथ है और मैंने यहाँ पेस्ट कर दिया. दैट इज कॉल्ड व्हाट? बेस्ट प्रैक्टिस. बट इन केस यू हैव you are upgrading the version of Java, तो तुम क्या करोगे? इसको कमेंट कर दोगे और यहाँ पे पेस्ट कर दो. Yeah, that's how it is. That's called best practice. Now I'm taking you back over here so that we can export this particular line. तो यहाँ पे मुझको 11 करना पड़ेगा कि नहीं? करना पड़ेगा. बाकी सब सेम था ना. I'm taking the risk. Okay, but it's okay. तो मैंने अभी Hadoop का environment भी सेट कर दिया, Linux का environment भी सेट कर दिया. अब बचा क्या? Now the question is, oh my God, पूरे concept इसी के ऊपर डिपेंड करते हैं. So that we will deal with tomorrow. However, we want to finish this today. So I am going to do up arrow. अभी किसी को अगर बेसिक Oracle मालूम है या इसने कभी सीखने की कोशिश किया, तो in Oracle there is a concept of Oracle Core, Oracle RAC, RAC, and Oracle Apps. मतलब ये होता है कि जो कोर कंपोनेंट है, ओके, उसको तुम सिंगल इंस्टेंस कनेक्ट कर सकते हो. हमारे यहाँ पे भी सेम कॉन्सेप्ट है. RAC रैक मल्टी इंस्टेंस कनेक्ट कर सकते हैं और RAC के बाद में ही तुम Oracle एप्स सीख सकते हो, which means you can connect multiple applications. Quite similar concept over here. The difference is हमारा जो कोर है उसका जो कॉन्फ़िगरेशन है, अभी हम बेसिक कॉन्फ़िगरेशन पे फोकस करेंगे. ओके, बेसिक. So first let me paste it. That is this particular property. So that you can see it. तो यहाँ पे ना file system default name. What is the name? HDFS. Now, as I told you last time, whenever you see two dots, that means there is some port number. Anybody who can tell me which port number is this? जान दो, time waste नहीं करने का. This is port number 22. Okay. And यहाँ पे देखो HDFS is a protocol, which means HDFS is a networking file system as well. याद रखना. What is the proof it is a networking file system? You tell me. ये दो डंडी याद है? Network. Okay.
then I'm going to have a server hosted called Aziz. Can I type localhost? Yes, I can. But मैं तुम्हारे दिमाग में डालना चाहता हूं what host name. अब इस host name को you can make it 8,000, 6,000, 5,000, whatever you like. But it is supposed to be above 5,000 because all these ports are free. तो मेरा जो ये सर्वर है, कौन सा सर्वर? कोर का. ये कहाँ नॉकिंग, कहाँ सुनने वाला है? 9,000 के ऊपर. तो इसको हम लोग कल ब्लैक बोर्ड के ऊपर देखेंगे. बट फॉर नाउ लेट मी सेव एंड कम आउट ऑफ इट. ओके, कितनी फाइल हो गई? 2 फाइल. नाउ द थर्ड फाइल. अगर मैंने कोर को सेट किया, इसका मतलब आई हैव एक्चुअली set a client configuration file. Core site.xml is known as client configuration file. Now my second file is mapred site.xml, okay, in which I need to paste this configuration quickly. Very small configuration for now, okay, where I am saying कि मेरा जो जॉब ट्रैकर है, मतलब मेरा जो लॉजिकल डीमन है, जैसे ओरेकल में होता है फिजिकल एंड लॉजिकल, सिमिलरली यहाँ पे भी है. I want it to run on which server? Aziz. And my port number will change this time instead of 9,000 because this is logical. And the core में कौन सा था? Physical. तो मेरा लॉजिकल और फिजिकल, मतलब ये फिजिकल, ये लॉजिकल, मैंने क्या किया? सेट कर दिया. सेट नहीं किया, कॉन्फ़िगर कर दिया. Now I will go with the next file, and that is slaves. इसमें क्या लिखा है? Local host. So I will remove this and type AZIZ, which means मेरा जो host का नाम है वो मैंने वहां पे डाल दिया है slaves के अंदर. Okay. Now there is a question. I will have one data node. I will have one name node. I will have one job tracker. तो कितने demons हो गए total? 3 demons, 3 process. Okay. And in slave, because one is going to be logical and one is going to be physical slave. तो logical और physical slave होने की वजह से I will have 2 slaves. One is a task tracker and the second is a data node. तो 2 ये हो गए, 3 और ये 4. तो टोटल डीमन कितने हो गए? 4 डीमन हो गए. और जो 5वां डीमन है वो है secondary name node, which is going to be in this file masters. So इसका जो host name है मैं इसको बता देता हूं, that is also okay changed. The first time when I told you this is a client configuration file, yes it is. You can also call the same thing as custom files. You can also call this override files. Getting the point? अब क्या बचा? So I have configured 1, 2, 3, 4, 5 files. 5 फाइल मैंने क्या किया? कॉन्फ़िगर कर दिया. फॉर नेम नोड ये वाली फाइल की कॉन्फ़िगर किया है. अब एक फाइल बच गई है, लास्ट, hdfs site.xml, because I want to override the configuration. तो अगर तुमने इसमें देखा तो तुमको यहाँ पे पता चल जाएगा कि why we want to make that change. However, it's a very small change. तो यहाँ लिखा है देखो, override in this file. तो override का मतलब ये होता है कि से डिफॉल्ट HDFS के 3 रेप्लिकेशन होते हैं. डेटा के रेप्लिकेशन कितने करेगा वो? 3.
लेकिन मेरे पास मशीन कितने हैं? एक, ओनली वन। तो मुझको क्या करना पड़ेगा? ओवरराइड करना पड़ेगा। तो मैंने इसकी वैल्यू क्या किया? रेप्लिकेशन की 3 थी, 3 ऑलरेडी है यहाँ, मैंने इसको 1 कर दिया। मतलब आई एम टेलिंग कि जस्ट डू 1 रेप्लिकेशन। So in total, how many client configuration files I have touched to configure? It is right in front of you. So I'm going to, अभी ये हो गया ना, इसका मतलब ये होता है कि now I need to format. So I will say Hadoop, enter to show you. जैसे ही मैंने उसको Hadoop enter किया तो उसने बोला कि देख, तेरे जो कमांड्स है, कमांड तू कोई भी एक कमांड इसमें से यूज कर सकता है। तो मेरा पहला कमांड जो मुझको यूज करना है वो कौन सा है? नेम नोड हाइफन फॉर्मेट। अब एक क्वेश्चन है, तुमको ये सेशन हेक्टिक लगा होगा। इट इज डिजाइन टू मेक यू फील आई कैन एक्सप्लेन दैट फीलिंग। कुछ लोगों का फीलिंग ऐसा है, भाई मैंने तो यार 2 इंस्टॉलमेंट भर दिया यार, 3 भर दिया, मेरे तो पैसे डूब गए, लगता मेरी तो कुछ समझ में नहीं आ रहे। मैंने तो यार, मैं सोचा इजी होएगा, लेकिन ये तो यार हालत खराब हो रही। तो सबके अपने अपने फीलिंग्स है, और ये फीलिंग एब्सोल्युटली नॉर्मल है। यू नो व्हाई? बिकॉज आगे जाके ये सारी चीजें मैं तुमको GUI में करके दिखाऊंगा, तब तुमको एकदम रिलैक्स फील होगा, बोला यस। और अल्टीमेटली ये तुमको प्रैक्टिस करना है लिनक्स के लिए, कि लिनक्स एक बबुल का झाड़ है, और तुमको वो प्रैक्टिस करना पड़ेगा, क्योंकि अभी सारे क्लाउड के टॉपिक्स आने वाले हैं। तो तुम प्रैक्टिस क्या करोगे? क्लाउड में तो प्रैक्टिस करने के लिए कॉन्सेप्ट है सारे, तो प्रैक्टिस क्लाउड में तुम ये करोगे। इसके लिए मैंने ये फटाफट आज इंट्रोड्यूस कर दिया। सी आई एम फॉर्मेटिंग है नाउ, Hadoop नेम नोड हाइफन फॉर्मेट। तो यहाँ पे देखो एक एरर मैसेज आया है, यहाँ पे देखो, सीरियस। और अभी ये सेशन के बाद कुछ लोगों को ये भी पता चल गया होगा कि वो लोग, जो लोग इतनी बड़ी बड़ी पैकेज ले रहे और बोल रहे कि सर मुझको 9 महीना लगा, मुझको 8 महीना लगा, मुझको 6 महीना लगा, 1 साल लगा। क्यों लगा? क्योंकि उन लोगों ने प्रैक्टिस लेट स्टार्ट किया। Remember this. Now see, Satish is asking a simple question. Why do you need to format? That's a good question. तो उसका अभी मैं एक सिंपल सा आंसर दे देता हूँ। बिकॉज तुमको मैंने जो कोर्स साइट डॉट एक्सएमएल में दिखाया था ना, FS डिफॉल्ट्स, मतलब फाइल सिस्टम का डिफॉल्ट नेम। व्हाट इज द डिफॉल्ट नेम? जो लोग नहीं देखे या ऑफ कोर्स याद नहीं रख सकते, इतना आसान नहीं है, तो देख लो वापस से। नाम क्या है? मैंने बोला HDFS। सो व्हाट इज द नेम ऑफ Hadoop फाइल सिस्टम? HDFS। बट व्हाट इज द फाइल सिस्टम? अगर इंटरव्यूअर ने पूछा तो then the answer is edits and FS image is the file system. क्या आंसर है? ये जो FS image है ना, FS image and edits, these two component are the file system. FS image मतलब अभी ये हार्ड ड्राइव पे है, और edits मतलब ये अभी रैम के ऊपर है। तो ये कॉन्सेप्ट हम लोग आगे जाके समझेंगे, डोंट वरी। बट फॉर नाउ मैंने फॉर्मेट कर दिया है, which means I have to start my demons. But before I start the demons, I will, first I will start. That is better. तो मैंने तुमको बोला था फिजिकल डीमन और लॉजिकल डीमन। तो मैं पहले कौन से डीमन स्टार्ट कर रहा हूँ? फिजिकल। फिजिकल में क्या है? नेम नोड है, डेटा नोड है, और सेकेंडरी नेम नोड है। नेम नोड, डेटा नोड एंड सेकेंडरी नेम नोड। अल्टीमेटली ये 3 डीमन स्टार्ट हो गए। तो मैंने JDK का पैकेज डाला था क्या? नहीं डाला था। तो मेरा एक पॉइंट प्रूफ हो गया। कौन सा पॉइंट? आई प्रूव्ड माय पॉइंट
that without JDK, you can install and your environment will be absolutely normal. JRE is important for production. JDK is only for development, जो हम लोग आगे जाके देखेंगे, डोंट वरी. आगे क्या, अभी बस अब अभी अभी हर हफ्ता तुम्हारे सर पे पहाड़ टूटने वाला है. यस, हर हफ्ता, बिकॉज वो हनीमून पीरियड ओवर. नाउ माय क्वेश्चन इज, इफ आई वांट टू फाइंड, मैंने तुमको क्या बोला, हडूप रन्स ऑन टॉप ऑफ JVM, बोला था कि नहीं? तो अब मुझको प्रूफ करना पड़ेगा ना. PS hyphen AUX pipe grep JVM. पिछली बार जब मैंने ये कमांड टाइप किया था तो उसके ऊपर क्या था? इसके ऊपर कुछ नहीं था, खाली था ये. अब की बार मैंने टाइप किया तो माय गुडनेस, सी, ओ माय गॉड, सो मेनी पोटलास एंड पाटलास. गवंडी लोग मेहनत करते, असल में देखा जाए तो हम लोग क्या करते, कुछ नहीं. उन लोग का किया हुआ उसका फायदा हमको मिलता है, दैट्स इट. असल मेहनत बेचारे डेवलपर लोग करते हैं. यस, सो आई एम गोइंग टू स्टॉप hyphen DFS. तो इट इज सेइंग स्टॉपिंग नेम नोड. देखो हमारा जो टॉपिक है ना, उसका जो लास्ट कंपोनेंट है वो क्या था पता है क्या? तुम लोग भूल जाओगे, इसके लिए मैं फटाफट तुमको एक बार वापस से याद दिला देता हूं. आई टोल्ड यू सिंगल मशीन node, ability to communicate from client to server on a network, cluster. तो अभी हमको देखना क्या बच गया, cluster, before we go home. Okay, now I'm going to do up arrow to show you JVM is खाली, empty. See, same command है ना, कुछ नहीं है उसके ऊपर क्योंकि मैंने स्टॉप कर दिया. That proves that all the demons are working on top of the JVM. तो फिजिकल डीमन में कितने नाम है? नेम नोड, डेटा नोड, सेकेंडरी नेम नोड. इन दिस केस आई एम गोइंग टू स्टार्ट ऑल, मतलब फिजिकल एंड लॉजिकल दोनों भी. तो सपोज इफ आई वांट टू स्टार्ट all, I can do this only in a single node cluster. I can't do this in fully distributed. तो all में मैंने क्या क्या चालू किया, फिजिकल एंड लॉजिकल. तो लॉजिकल में सिर्फ दो डीमन है, जॉब ट्रैकर एंड टास्क ट्रैकर इन दिस केस. ओके, which means if I want to show you JVM के ऊपर क्या है, see, look at the screen. एंटर मारते के साथ तो ये है मेरा JVM और इसके ऊपर ये. अब फाइनली तुमको देखना है क्लस्टर, चलो वो भी दिखा देता हूं. तुमको याद है जावा प्रोसेसेस देखने के लिए हीडलेस की जरूरत थी. ओके, और एक खास बात, वर्जन 11 में चल रहा है कि नहीं? चल रहा है ना. दैट मीन्स वर्जन 11 इज बैकवर्ड कंपैटिबल. Say thank you to Gawandis. Otherwise, my life would have become miserable today. I had taken a risk. तो अब मेरा जो एक ही काम बच गया है, तुमको मैं क्लस्टर दिखाऊं. हमारे यहाँ पे क्लस्टर का मतलब ये होता है, क्लस्टर ऑफ डीमंस, क्लस्टर ऑफ प्रोसेसेस, क्लस्टर ऑफ प्रोग्राम्स, क्लस्टर ऑफ सर्विसेज. चलो तुमने अंगूर का क्लस्टर देखा है क्या? सपोज आई आस्क यू कि मुझको है ना ग्रेप्स, हाँ, ग्रुप ऑफ डीमंस यू कैन कॉल इट. तो अंगूर जो होता है ना, अंगूर ग्रेप्स, उसका एक क्लस्टर होता है, इजंट इट? वो एक ही डंडी को चिपका हुआ होता है. तो हमारे केस में वो जो डंडी है उसका नाम है JVM. ओके, तो जावा, सो आई विल टाइप J, और उसके जो प्रोसेसेस है वो मुझको देखना है, PS.
सो ये है वो क्लस्टर। अब तुम जो क्लस्टर के बारे में सोच रहे थे या तुमने जो वीडियो देखा था यूट्यूब पे, है ना, वो था इलस्ट्रेशन पर्पस के लिए। ओके, देखा, सवाल गरीबों का, जवाब भी गरीबों का, कोरा ही देगा वो, मुझको पता था। लेकिन तुम्हारे दिमाग में क्लस्टर मतलब ऐसा कुछ होगा, isn't it? Isn't it? This is my favorite, this one. लेकिन अब तुमको पता चला भैया हमारा क्लस्टर ऐसा है। सच ये है। अब डिफरेंस ये है कि दिस क्लस्टर इज ऑन वन मशीन एंड आई वांट टू पुट दिस ऑन many machines. Matlab, I want name node to be on a separate machine, this on separate, and this on separate. So that will become fully distributed cluster. You can call it a multi-node cluster. उसके अंदर जो SSH होगा रियल होगा, IP जो होगा रियल होगा, और अभी जो हम खेल रहे हैं वो किससे खेल रहे हैं? हमारा होस्ट नेम क्या है? सी, हमारा जो होस्ट नेम है वो क्या है? We are playing with this fully qualified domain name, isn't it? So what we'll do is we'll understand the concept and I will convert the same machine tomorrow into a multi-node cluster to make your life easy and concept on its place. ठीक है ना? तो आज के लिए बहुत हो गया. Wish you all the best and take care. We'll deal with the concept tomorrow. Web UI. Okay. Sorry. एक काम करते, वो किसी ने मुझको, निखिल ने याद दिलाया सी कि वेब यूआई में मुझको देखना है, तो चलो देख लो। curl if config.co, मतलब तुम्हारे पास आईपी एड्रेस आ गया, isn't it? और I'm taking that IP address, pasting it here, public IP, and I'm typing 50070. So it is saying कि यार मैं गया वहां पे, मैं बहुत पोर्ट नंबर 80 पे ठोक ठोक के थक गया, but nobody is listening to me, so I have to go back where? To my firewall. Actually, I am supposed to go from here, isn't it? But I don't do that. What I do is I go from here because I am in training environment. So तुमको दिखाने के लिए, see, तो यहाँ पे देखो SSH को अलाउड है ना, लेकिन मुझको चाहिए क्या? HTTP. In reality, I am actually looking for a custom port number. So let's say custom, okay, and my port is going to be 50070. And then I'm allowing all of you to access. So let's save it. तो तुमको अभी करना क्या है? You have to type this particular IP address with 50070. तो तुमको ये एड्रेस मैं दे देता हूं चैट विंडो पे। तो तुम्हारा एक ही काम बचेगा, सिर्फ क्या करने का? क्लिक करने का। See, you just have to click on this. देखा? So now you're getting service by a server, which is a local. Amazing, isn't it? But actually, इसके बैकग्राउंड में बहुत कुछ हो रहा है, तो उसको हमको समझना भी तो पड़ेगा ना? Yeah, we will have to. So we can browse the file system and so on. But now what you can do is you can change the port number to 30. मतलब
50030. So देखो वापस से वो चालू हो गया गोल गोल घूमने का. I am going back and adding one more rule. Add rule. इससे तुमको एक चीज खाली सीखनी मिल रही है कि यार कंट्रोल जो है वो अपने पास है. Yes. If you understand this, कि you control everything, तुमको जीने का मजा आने लगेगा. See, Hadoop MapReduce Administration. गंदा है ना एकदम इंटरफेस. ये ओपन सोर्स वालों का ऐसे ही रहता है. सब दिखने में गंदा रहता है लेकिन काम करने में भारी रहता है. लेकिन ये हमको सिर्फ सीखने के लिए. आगे जाके क्लाउडेरा का इंटरफेस है कलरफुल, अमेजिंग, गुड लुकिंग, isn't it? We'll deal with that. But right now you have accessed the server, right? So server is giving you the service. So I will ask the server to stop giving you the service. Stop hyphen. तो अभी जो 30 है ना, वो पोर्ट के ऊपर जो तुम एक्सेस कर रहे हो, that access will be revoked because there is nobody listening. So I'm going back to 70. See, 70 में अभी मेरे को सर्विस मिल रही है. So मैं इसको बोलूंगा stop hyphen tfs.sh. तो बोल रहा है कि stopping name node, stopping data node and stopping secondary name node. Here it is. So मैं refresh कर रहा हूं. गया. Wish you all the best and take care. Tomorrow we will begin from here.